بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ناظرین، حاضرین۔ میں عدیل احمد، آپ کا ضرب سکون کا ہوسٹ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون ہے مرکز افضلیہ کا اور صوفی ستسنگ گروپ کا۔ تو ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آج 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ بہت اچھا ریسپانسز ہیں، بہت اچھا ہمیں جو ہے فیڈ بیک مل رہا ہے اپنوں سے، پراؤں سے، اور خیر اس میں فیلڈ میں پرائے تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ تصوف سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے پیر بھائی ہیں، سارے دوست ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں۔ تو ہمیں سب سے بہت اچھا فیڈ بیک اور اپریسیشن مل رہا ہے۔ آپ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی اس کی معلومات یا تعلیمات ہے ان لوگوں تک بھی پہنچے، ان کے علم میں اضافہ ہو سکے اور ان کے سکون میں، ان کے ذوق شوق میں اضافہ ہو سکے۔ میں اپنے کو ہوسٹ کو اپنے ساتھ آن لائن لیتا ہوں۔ السلام علیکم امیر بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھی بات ہے جناب۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا وہ بابا اسحاق کے ساتھ، وہ بہت اچھا تھا، اور انفیکٹ ساری ہی ایپیسوڈ ہماری بہت اچھی تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹ ہمارا ایپیسوڈ گیا ہے اس کا ایک اسپیل ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ایک اثر ہوتا ہے اس کا، جو کہ ہم تک رہتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ جو اس سے بھی بھرپور ہو کے آتی ہے تو پھر اس کا اسپیل بھی جو ہے وہ پھر اگلے ہفتے تک یا ہم پہ طاری رہتا ہے۔ تو یہ بالکل دیکھیے، بالکل یہ تمام بزرگوں کی تعلیم، تمام تصوف کی تعلیم، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کا ایک اپنا اثر ہے، اس کی ایک اپنی جی انوکھی بات ہے، یعنی کہ ہے کہ آپ جب یہ کرتے ہیں، جب یہ سیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسا فیل آتا ہے کہ یار یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میرے لیے ہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ یہ ایک اپنائیت کا فیل آتا ہے، ایک آپ کو کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ کا فیل آتا ہے، یعنی ایک ایسا فیل آتا ہے کہ جیسے ہم کوئی الگ نہیں ہے، ہم ایک جماعت کے طور پہ ہیں، اور اب بالکل تعلیمات بالکل اگرچہ مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مرکز اور جو منزل ہے وہ تو ایک ہی ہے نا امیر ایک بھائی؟ ہی، بے شک منزل بے جو شک۔ ہے جس طرف گامزن ہے، رستے جدا جدا ہیں، منزل تو ایک ہے۔ اب اس میں کوئی جلدی پہنچتا ہے، کوئی دیر سے پہنچتا ہے، کوئی کٹھن رستے سے پہنچتا ہے، کسی کو کرم نازی ہو جائے مرشد پاک کی تو راتوں رات پہنچا دیتے، یا صحیح، ایک سیکنڈ بھی نہیں بالکل لگتا بالکل اس کو پہنچا دیتے، لیکن آبویسلی اس کو اور اگر کوئی منزل پر نہیں بھی پہنچتا، یعنی اس راہ میں چلتے چلتے اگر اس کا آخری وقت آ بھی جاتا ہے تو وہ شہید بھی ہو جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو ہے کہ اس کو سرکار کی روز محشر جو ہے شفاعت نصیب ہو۔ بالکل تو بالکل، اس میں تو اس کوئی شک کی معاملات بات میں نہیں۔ اور اس معاملات میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو تعلیمات ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب کریں۔ آمین آمین۔ تو امیر بھائی چلیے آج کے گیسٹ کی طرف چلیں، یا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہمارا تو کچھ کیا کہنا ہے، آپ نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ راستے جدا جدا ہو سکتے ہیں لیکن منزل اور مرکز تو ایک ہی ہے۔ تو ہمارا جو یہ ضرب سکن کا اسٹارٹ کرنے کا جو موٹیو تھا، مطلب بیسیکلی تو یہ آئیڈیا آپ کا تھا، لیکن ہم نے جب سوچا کہ ہم لوگ تو اس پر کام کر رہے ہیں پہلے سے، لیکن کیا ہے بہتر ہو کہ الگ الگ سلسلوں کے الگ الگ خلیفاؤں کو، الگ الگ پیر حضرات کو اگر بلا کر کے ان کی پرسنل لائف اور ان کی پرسنل اسٹرگل کو پوچھا جائے، وہ کس طرح سے اس مقام پہ پہنچے، اس منزل پہ پہنچے، تو مطلب ایک نئے طالب اور نئے سالک کے لیے بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ امپروو کر سکتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور اس سلسلے کا نظام اس طرح ہے اور اس سلسلے کا نظام اس طرح ہے۔ مطلب ہم کو وہ اپنے آپ میں ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہم میرے لیے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ میرے لیے آسان ہوگا۔ لیکن بات تو صحیح ہے کہ آپ راستہ کوئی بھی چنیں، آپ کو پہنچنا ایک ہی جگہ پر ہے، منزل ایک ہی ہے، لیکن راستہ الگ ہے، تو آپ کے لیے جو بہتر راستہ ہے آپ وہ چن لیں۔ اسی میں ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے حضرات صوفیہ اکرام کو جو آج کے دور میں بڑے نایاب ہیں، تو ان کو بلا کر کے ان کی پرسنل لائف، ان کی اسٹرگل، ان کی مطلب انہوں نے کس طرح اس راستے میں قدم رکھا، اس کو ہم لوگ ڈسکور کریں اور اس کو جانیں، اور بس یہی ہماری کوشش ہے، آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور کیا۔ یہی کوشش ہے ان کی تعلیمات سے مستفیض ہو سکے، اور جو عوام بالکل الناس کے مسائل ہیں وہ ان کے ذریعے حل ہو سکتے ہوں۔ باقی ہر کسی کے اپنے جو ہیں معاملات، اور ہر کسی کے اپنے ایک زاویہ یا سوچ کا اینگل ہوتا ہے، تو وہ اس اکارڈنگ سے دیکھ سکتا ہے جہاں اس کو
बेहतर महसूस होता है। तो बढ़ते हैं आज के सही। गेस्ट की तरफ। और पांचवें एपिसोड में हमारे साथ जो आज के गेस्ट वो हजरत पीर आदिल बीजापुरी के सिलसिले में से है। माशाल्लाह से वहाँ से उनको खिलाफत भी मिली है, तो हम वेलकम करते हैं हमारे नहायत मोहतरम मरकज़ अफजलियत के साथ अपने से जुड़े हुए दोस्त जनाब हजरत सूफी इलियास शाह कादरी साहब। और इनको हम राहत पीर के नाम से जानते हैं, और ये सिलसिला आलिया कादरिया से खिलाफत भी हासिल है इनको। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब राहत पीर साहब, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं और अभी क्या करते हैं? और मतलब इस राह में आने से पहले क्या करते थे? वो शुरू से हम लोग आप आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल पे मुझे आपने मदद किया। देखिए, मैं गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ। जी, ऐसे मैं रहने वाला हूँ यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड में भावानंद करके एक गाँव, उस गाँव का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी तालीम दीनी तालीम मदरसे में हुई है। जी, लगभग जी। हमने 20 साल मदरसे की ज़िंदगी गुज़ारी है। और फिर 2005 से मैं पीरे तरीक़त में दाखिला लिया हूँ। अच्छा, अच्छा। 2010 में मेरी खिलाफत हुई माशाअल्लाह। पादरी की, और 2015 में मेरी चिश्ती की खिलाफत। अच्छा, अच्छा, मेरी अच्छा। निस्बत माशाअल्लाह। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह से है। मैं जी, उनके खलीफा का खलीफा, मेरे पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हमीद शाह कादरी उल चिश्ती इफ्तिखारी तरक्की पीर है। ये माशाअल्लाह। मुंबई में ही मानकुर्द अन्नाबाव साठे नगर में रहते हैं। और मेरी तालीम के बाद अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में जो कुछ भी हासिल हुआ है, आज मेरी खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इलाके में यूपी की तरफ ज़्यादा मेरा सिलसिला है, बिहार में है करीब 8 शहरों में, और लगभग यानी ये हिंदुस्तान के अलग-अलग जगह पे मेरे सिलसिले हैं। ये आप लोगों की माशाअल्लाह। दुआएँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर व माशाअल्लाह। मुर्शिद का ये फ़ज़्ल-ओ अज़ीम है कि बेशक, दीन की बेशक। खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मैं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है सरकार राहत पीर। जी, जी, जी। और बेशक। एक कमेटी मेरी है, जिस कमेटी से ये मैसेज यानी ये ख़ास दिया जाता है कि सिलसिले में जो लोग भी मुरीद हैं या खलीफा, वो लोग जो रिश्ता करते हैं ना, तो अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता किए और उनके खानदान के लोग पीरे तरीक़त से वाकिफ नहीं हैं, तो ये हुँ। प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए ये कमेटी काम करती है। अभी परसों हमने इसकी गठन किया है, तमाम के तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन शामिल थे। ये तय पाया माशाअल्लाह। कि सिलसिले के लड़का और सिलसिले की ही लड़की अगर है, तो सिलसिले में ही रिश्ता हो, बहुत उम्दा होगा, उससे कई चीज़ों की बचत होगी। हुँ, हुँ। सालाना हमारा प्रोग्राम होता है, जश्न गौसुल आज़म दस्तगीर, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ व जश्न चरागा पीरा दिल। तो उसी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम में लड़की और लड़कों का रिश्ता किया जाएगा। उससे लंगर खाने के ज़रिया वो दावते वलीमा भी और दावते बारात भी शामिल किया जाए, जिससे लड़की वालों को भी दिक्कत नहीं और लड़कों वालों को भी दिक्कत नहीं है। और भी हमारी कमेटी इंतज़ामिया ये देखेगी कि अगर लड़की के गार्जियन अगर माली हालात में कुछ कमज़ोर हैं, तो लड़की को मायूस नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी ज़रूरियात का सामान भी मुहैया किया जाएगा। और उसके अलावा भी जितने भी लोग आएँगे, वो तमाम के तमाम तोहफ़े-तोहाइफ से नवाज़ेंगे और तमाम
بزرگان دین کی سرپرستی میں وہ لڑکی کی رخصتی ہوگی. یہ ہمارا پیشہ ہے کہ ماشاء ہم اللہ. چاہتے ہیں کہ دین متین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کی جائے، جس سے قوم کی بھلائی اور قوم کی فلاح اور بہبودی ہو. قوم بہت پریشان حالات میں ہے. آج دیکھا جائے تو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، صحیح صحیح. طرح طرح کے فتنے فساد ہو رہے ہیں، جبکہ یہ دین اتنا صاف ستھرا دین ہے جس دین کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تن من دھن یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر بے شک. اس دین کی خدمت میں آپ نے ہمیشہ قربانیاں دی. لیکن آج ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ اس دین کے لوگ ادب و احترام بھی نہیں سمجھتے، بلکہ صحیح فرقوں صحیح. میں بٹ کر کے. اور آج یہ میسج لوگوں میں جاتا ہے کہ ارے تمہارا دین کیسا ہے جس میں پوری زندگی وہ شخص کسی کمیٹی سے جڑا رہا، آخر وہ دنیا سے چلا گیا تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی اور اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے. آخر وہ در بدر کیوں بھٹک گئے؟ جبکہ ایسا تو نہیں ہے. اس دین کا مقصد اور مطلب جماعت سے، جس جماعت کو فرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پہلی جماعت جو پنجگانہ کی، اس پنجگانہ میں اگر آپ 10 آدمی جمع ہے نا تو جمع ہو کر یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ مقتدی کس حال میں، کس پریشانی میں، کس صحیح صحیح. اگر ایک صحابی نہیں آتے تو تمام صحابی اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کہاں بالکل چلے بالکل. گئے، کیا حالات ہے ان کی، کس پریشانی میں مبتلا ہیں. ایسا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس جماعت میں 10 لوگ، تو 9 لوگوں نے انتظار کیا کہ وہ صحابی نہیں آئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں. تو ظہر میں آئیں گے تو ان سے حال معلوم کیا جائے گا. آخر ظہر میں بھی نہیں آئے تو عصر میں معلوم کیا جائے گا. عصر میں بھی نہیں آئے تو ایک شخص کو بھیجا گیا ان کے گھر کہ جاؤ دیکھو وہ کس حالات میں ہے. تو معلوم پڑا بالکل. ان کی طبیعت خراب. وہ صحابی آگے بتائے کہ وہ کہیں نہیں گئے بلکہ ان کی طبیعت خراب ہے، اس کے کارن وہ ہماری جماعت میں شریک نہیں. تو جو صحابی بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے ایک ایک درہم جمع کر کے ان کی طبیعت کا علاج، ان کے گھر کا خرچ کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ حال معلوم کیا کہ اس جماعت میں ایک شخص کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ان کی طبیعت کا علاج یہ لوگ مل کر کے. یہی ادا اللہ کو پسند آیا اور جماعت کو فرض قرار دیا. اب اس فرضیت کو اللہ کے رسول نے آگے لوگوں تک پھیلائے کہ ہر ایک جگہ 10 لوگ جماعت قائم کیے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 جماعت کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جسے جمعہ کہتے، اور اس جمعہ میں جمع ہو کر کے اور وہ عبادت، ریاضت، تقوی اور طہارت بھی سیکھے، ساتھ ساتھ وہ 10 گاؤں کی رہنمائی بھی کیے کہ اگر وہ 10 گاؤں میں کسی ایک انسان کی تکلیف ہے یا 2 انسان کی تکلیف ہے، کسی کی بھی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو کیسے دور کیا جائے اس کے بارے میں خطبہ دیا اللہ کے رسول. اسی طریقے سے تیسری جماعت قائم ہوئی جس کو عیدگاہ کہتے، اور عیدگاہ میں 10 جمعہ کے لوگ جمع ہوں اور جمع ہوئے تو اس میں بھی یہ بات رکھی گئی ہے
کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اس جماعت میں شریک نہیں ہے. تو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی انتقال. جی تو ان کی بیوی کی ضرورت، ان کے بچوں کی ضرورت پہلے پوری کی جائے، اور پوری کی گئی. اور اسی وقت یہ طے کیا گیا کہ سالانہ زکوٰۃ 100 میں 2.5 روپیہ جو لوگ کماتے ہیں، اور 2 کلو 45 گرام اناج جو نہیں کماتے ہیں وہ فطرہ ادا کریں گے. یعنی یہ سالانہ انتظام کیا جائے گا ان کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جیسے غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، مفلس، لاچار، بے بس. یعنی وہ لوگ در بدر نہیں پھریں گے، کسی کے بالکل در پہ بالکل. نہیں جائیں گے، وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یعنی بھیک مانگنا اسلام میں نہیں. تو یہ چیز جب مجھے معلوم پڑا تو زیادہ سے زیادہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، جبکہ اللہ نے بندوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، بے شک یہ بے اگر شک. ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مشیت خدا بندی کو یہ گوارا نہیں ہو کہ صحیح. میرا بندہ جس کو میں نے ہاتھ جیسی نعمت دیا، کان جیسی نعمت دیا، زبان جیسی نعمت دیا، میں نے آنکھ جیسی نعمت دیا، میں نے پاؤں جیسی نعمت دیا، اگر وہ اندھا ہے تو آنکھ کا صدقہ لے، بہرا ہے تو کان کا صدقہ لے، گونگا ہے تو زبان کا صدقہ لے، اگر وہ لونجا ہے تو ہاتھ کا صدقہ لے، اور اگر وہ لنگڑا ہے تو پیر کا صدقہ لے. لیکن ثابت ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. ویسے شخص اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں تو قوم کی بہت بے حرمتی ہوتی ہے اور دین اسلام کی بے عزتی ہوتی ہے. بالکل اس بالکل لیے بالکل صحیح. میرا ماننا ہے کہ اگر آپ لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو بہتر سے بہتر لوگ اپنی اپنی باتیں آپ کے اس چینل میں رکھے، جس سے قوم کی بھلائی ہو اور بے رہنمائی شک. بھی ہو، اور ہر وہ شخص دین پر صحیح طریقے سے عمل کرے. جی ماشاء اللہ بہت عمدہ خدمات انجام دے رہے ہیں آپ، اس کے لیے تو بہت قابل تعریف ہے آپ کی خدمات. تو اس میں جو آپ کا آپ سے سوال جو پہلا تھا حضرت، یہ تھا کہ آپ 2005 میں جس طرح آپ نے بتایا کہ 2005 میں بیعت ہوا، تو ہم یہ جاننا جی چاہیں گے کہ آپ اس راہ میں کس طرح آپ آئے. اس راہ میں تو بہت کم لوگ آتے ہیں، آپ کو مطلب کیا پتہ چلا یا کس طرح آپ نے سوچا کہ اس راہ میں آنا چاہیے، وہ بتائیں. جی کیا میں موٹیویشن تھا پڑھائی کے آپ کا؟ دوران کیا ہی مجھے ریزن تھا؟ جی. حضور تاج الشریعہ جن کو کہتے ہیں، میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوا. اچھا اچھا. یہ لگ بھگ جو سمجھیے کہ 90 میں، ممبئی 1990 نہیں میں. تھا، ہاں جی 1990 میں ان سے مرید ہوا. تو یہ سوچ رہا تھا کہ مرید ہونا بہت ضروری ہے، اور میں مرید ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ یہ غور کرنا شروع کیا کہ مرید تو ہو گیا ہوں، لیکن آخر کیا جاننا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، یہ مجھے تعلیم نہیں تھی، یہ معلوم نہیں تھا. لیکن یہ ذہن و دماغ میں بات گونجتی تھی کہ جی. وہ بھی مرید ہوئے کسی کے، لیکن وہ پیر کیسے بن گئے. آخر جی ہم مرید بھی صحیح سے نہیں بن پائے ہیں، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہر ایک ماشاء بزرگان دین سے ملنا، ہر ایک بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا اور غور کرنا کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا اللہ. سمجھاتے ہیں. جہاں میں نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی تعلیم ہو رہی ہے تو میں نے اس تعلیم کو لینے کی کوشش کی. یہاں تک ماشاء کہ فرقوں میں بھی میں گھوما ہوں، ہر ایک فرقے اللہ. کے بارے میں تحقیق کیا، اس کے بارے میں تصدیق کیا کہ یہ جی کیا وجہ ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جی تو جی. جاننا ضروری ہے نا. تو ہر صحیح ایک صحیح. فرقوں کے بارے میں تحقیق کیا. جب میں نے دیکھا کہ دیوبند جماعت بہت پھل پھول رہی ہے اور یہ بہت محنت کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے.
تو میں جماعت جی میں بھی گیا، اچھا اچھا اور ماشاء جب یہ معلوم پڑا کہ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، اس میں بھی دین سکھایا جاتا ہے، سنت بتایا جاتا ہے، تو میں اس میں بھی گیا، سنی دعوت جی اسلامی میں بھی گیا. یعنی حتیٰ کہ ہر ایک کے دن میں کوئی نہ کوئی خزانہ اللہ نے رکھا ہے، جی 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 لینے والا چاہیے. اس کائنات میں بالکل ہم بالکل لینے کے لیے آئے ہیں نا، اس ہوں کائنات سے کچھ تو ہم لے کر کے جائیں گے نا. تو بالکل خدا بالکل کی قدرت کائنات کے ہر ذرے ذرے میں، ہر قطرے قطرے میں، ہر تنکے تنکے میں بالکل بالکل ایک ظاہری علم ہے جو کتابوں میں، ہوں لیکن ایک باطنی علم ہے جو بزرگان دین کے سینے میں. سینے میں ہے بالکل اس علم کے تلاش میں نکلا. ماشاء اللہ ایسا بہت عمدہ ہوا کہ تعلیم میری پوری ہوئی، اس کے بعد میں مدرسے میں پڑھا بھی رہا تھا، مسجد میں امامت بھی کر رہا تھا. میں نے 3 مسجدوں کی تعمیر بھی کی ہے ماشاء اللہ اپنے ہاتھوں سے، بہت اور تراویح بھی پڑھا رہا تھا. واہ پھر کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ جی میں حافظ قرآن ہوں اور قاری قرآن بھی ہوں میں، اور میں ماشاء اللہ عالم بھی ماشاء اللہ ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہتر میری حفظ 2.5 سال میں مکمل ہوگی. میری ایک تعلیم جو ہے ممبئی میں حنفیہ رضویہ کلابہ. آپ کے لیے تو اور بھی چیلنجنگ رہا ہوگا کہ زیادہ تر علماء حضرات جو ہوتے ہیں تو صوفیہ اکرام کے جی راہ میں جی آنے جی والے بہت کم ہیں. آج مجھ سے کوئی بھی جی کانٹیکٹ نہیں رکھتا. ہے نا بالکل ہر یہی کوئی یہ ہوتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، غلط کر رہا ہوں، لیکن مجھے صحیح صحیح معلوم کہ میں جو کر رہا ہوں میں صحیح کر صحیح رہا ہوں. ہاں بالکل بالکل تو ہر ایک چیز سامنے آیا ہے، اور یہ رب کی عطا ہے کہ بزرگان دین سے منسلک ہوا، اور میں نے ایک ہی چیز سمجھا کہ جو حق میں ہے وہ ملے. بالکل بالکل جو آپ کا حق ماشاء ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں، یہ آپ کو وفا کرنا پڑے. ہو سکتا ہے بالکل کہ مولا نے اس وقت وعدہ کرایا تھا اور میری روح نے قبول کیا تھا، اور اس دنیا میں بھی اسے قبولیت کی شرف حاصل ہوا. صحیح تو اس بالکل میں آنے کے لیے میں بہت جدوجہد، کسی بھی شخص کی باتوں کو میں نے انکار نہیں کیا، لیکن آخر میں کسی بھی چیز کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتا. جی 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 جب دل نے بہتر گوارا کیا تب پھر میں خواجہ شیخ محمد حمید شاہ قادری الچشتی افتخاری ترقی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں طالب بیعت، جی یعنی طالب وہ، بیعت ہوئے. جی 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 مجھے علم کی طلب تھی، اور میں ان کی صحبت میں ایسا رہا کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا، اور رات میں بیٹھ کر ان کی صحبت میں باتیں سیکھنا. کوئی بھی سوال ماشاء ذہن و دماغ میں ہے تو پوچھتے تھے، تو میرے پیر و مرشد ایک سوال کا انیک جواب دیتے تھے. جی جی کامل شریعت کی کا یہ پہچان ہے. طریقہ، شریعت میں یہ جواب ہے، طریقت میں یہ جواب ہے، حقیقت میں یہ جواب ہے، معرفت میں یہ جواب ہے، وحدت میں یہ جواب ہے، وصلت میں یہ جواب ہے، وحدیت میں یہ جواب ہے، وحدانیت میں یہ جواب ہے، انا میں یہ جواب ہے، فنا میں یہ جواب ہے، بقا میں یہ جواب ہے. یعنی علم تصوف کے تمام خزانوں سے واقفیت میرے پیر و مرشد کے اندر ہے. ماشاء پورا اللہ خزانہ ماشاء ہے نہیں، اس لیے میں نے اپنے پیر و مرشد کے القاب بھی دیا ہے. اللہ گنج العارفین، ماشاء اللہ اسرار گنج مخفی، رموز جی جی معرفت، مخزن علم و حکمت، پیر ماشاء روشن اللہ ضمیر حضرت خواجہ شیخ محمد حمید شاہ قادری الچشتی افتخاری ترقی پیر ہرے بھرے شاہ. ماشاء اللہ. تو حضرت کیا ابھی جی حیات ہیں یا وصال کر گئے؟ جی جی میرے پیر و مرشد ابھی حیات ہیں، اور الحمدللہ ماشاء اللہ ہم ماشاء سے اللہ بھی زیادہ
तंदुरुस्त है और हमसे भी ज्यादा, यानी जैसे वो हाँ माशाल्लाह यूं माशाल्लाह। समझिए कि चलने में, हाँ, बैठने जी जी में या जागने में, यानी हर एक चीज में आगे हैं। जी जी जी। आज मेरे पीरो मुर्शिद की उम्र शरीफ जो है कुछ 67, हाँ 67, यानी ये ना 66-67 साल की है। 67 साल, जी जी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो ये हजरत बताएं कि मतलब मुरीद होने के बाद क्या तुरंत खिलाफत मिल जाती है आपके सिलसिले में, या नहीं नहीं किस नहीं नहीं, तरह होता तुरंत है? खिलाफत नहीं मिली है, तुरंत खिलाफत नहीं मिली है, बल्कि जी जी। पीर की निगाहे करम हो तो पल में अता कर दे। हम्म। माशाल्लाह जनाब, बहुत उम्दा। और ये हक बात है कि सूफिया कराम की राह में जो लोग आते हैं शरीयत से, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमीर भाई, अपना अगला सवाल कीजिए। जी, बहुत उम्दा जवाबात हजरत, माशाल्लाह। आपने जी आपके जैसे आपने आपके पीर मुर्शिद का जिस तरह से ताल्लुक है, और हजरत पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नामवर शख्सियत हैं और बहुत ही जी जी बड़े जी। वली हुए हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अक्सर सुना है कि आपके सिलसिले में, खासतौर से आदिलिया सिलसिले में, कलमे का अक्सर जिक्र किया जाता है। कलमा, जी जी कलमे जी को समझो। जी। और इस सिलसिले में एक बात यूज होती है कि कलमे के कल को समझना है। तो हमें मतलब बेसिकली जो बताने लायक बातें हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर कलमे की कल को किसको कहते हैं और इससे क्या मुराद होता है, आखिर किस चीज को समझना होता है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गौसुल आजम दस्तगीर आप मापेट से वली काबिल, जी लेकिन उसके बावजूद भी जाहिरा इल्म से वाकिफियत के लिए उनकी वालिदा मदरसे में लेके गई, और आपको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खानी जिन्होंने कराया, बस इतना ही यानी जे उन्होंने पढ़ाया था, बाकी सारा का सारा कुरान यानी जे आपने पढ़ करके सुना दिया। आपको एक पल में उन्होंने यानी ये सनद दे दिया कि आप हाफिज कुरान हैं। आगे हम्म। भी तालीम यानी जे लिए हर जगह यानी जे आपकी ये फजीलत थी कि आप जाहिरा इल्म से वाकिफ हैं, यानी आप जी हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं। यहाँ बेशक। तक कि उलूम व फनून के तमाम जाहिरा से वाकिफियत आपको हो चुकी है, लेकिन बातनी इल्म से वाकिफ होने के लिए आपकी वालिदा कहती है कि बेटा, ये लफ्जों का इल्म तुमने बताया है, लेकिन नुक्तों का इल्म जानना है। हम्म। तो आप यूं समझिए कि कायनात में जो कुछ भी है वो सब के सब आपके कुरान के अंदर है। बेशक। उसके बारे में कुरान बयान देता है, लेकिन कुरान के अंदर जो कुछ भी बातें हैं वो सब बातें आपके कलमे तैयब में। हम्म। और जिसने कलमे बेशक। तैयब को समझ गया कि इसमें आग, पानी, हवा, मिट्टी, जात और सिफात, यानी जी। ये कायनात की सारा निजाम ये 6 हम्म। चीजों पे है। आप यूं 6 देखिए ना चीजों पर। कि हाँ, कुदरत ने जो बनाया है ये कानून है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आसमान और जमीन, ये 6 चीजें हैं ना। जी इन्ना खलका समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, यानी अल्लाह फरमाता है कि मैंने 6 दिन में इस कायनात को बनाया और 7वां बेशक। दिन मैं अर्शे आजम पे मकाम की। हम्म। तो ये सही। 6 दिन की कहानी जो है वो आपका कलमा बताता है। ला बेशक। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इन 6 हम्म। चीजों की हकीकत से जो वाकिफ हो जाएगा, यानी मतलब कलमे के सारे कल से वाकिफ हो, माशाल्लाह और जो माशाल्लाह। कलमे के कल से वाकिफ हो गया, इसके मतलब ये है कि उसकी कुदरत को समझ गया, उसे राज़े मख्फी रमूज़े फुकराई कहा जाता है।
राज़े मख़फ़ी रमूज़े फ़ुक़राई। माशाल्लाह, जी, माशाअल्लाह, जी। जैसे माशाअल्लाह आप मतलब अपने कि वजूद के अंदर देखेंगे ना तो सारा चीज जी। मौजूद है, हुँ। हर चीज मौजूद है, लेकिन जी, जी, आप जी। कुरान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि जब तक आपकी वो नजर नहीं पैदा होगी जिस नजर के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, तब तक आपकी आंख आंख नहीं है, हुँ, बल्कि सही, एक नुमाइश है। वो देख तो रहा है लेकिन अंधा है, अंधा है। हुँ, वो सुन भी रहा है बिल्कुल, लेकिन वो बहरा है, बहरा वो है। देख बोल भी रहा है लेकिन वो गूंगा है, वो चल भी रहा है लेकिन लंगड़ा है, वो उठा भी रहा है लेकिन वो हाथ से लूंजा, क्योंकि कहा गया है हुँ, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, इसलिए कि तुमको जब तक कोई रहबर और रहनुमा ये ना बता दे कि ये तुम्हारे हाथ की कीमत क्या है, तुम्हारे ये आंख की कीमत क्या है, ये तुम्हारी जुबान की कीमत क्या है, ये तुम्हारे पाँव की कीमत क्या है, अल्लाह बिल्कुल, दिन बिल्कुल। भर के अंदर, अब बताइए ना, क्या 24 घंटा से किसी को कम मिलता है? वो ये कहे कि नहीं। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे 23 घंटा मिला और आप अमीर हैं इसलिए आपको 24 घंटा मिला, हुँ, उससे सही भी बात। ज्यादा अमीर है तो उसको 25 घंटा मिला, ऐसा है किसी का? नहीं, सबको बराबर तो है। इससे मालूम पड़ा कि उसकी कुदरत में सारा निजाम एक सा है, बस बिल्कुल। तहकीक करने वाले, तस्दीक करने वालों की तादाद जो है ना, ये बहुत कम, यही क्योंकि बात। आप 24 घंटे के निजाम को समझ जाएंगे आप तो आपको कलमा समझ में आ जाएगा, बड़ी क्योंकि बात। बिल्कुल, कलमा ला ठीक इलाहा कहा इल्लल्लाह आपने। मोहम्मद रसूलुल्लाह में 24 हरूफ, 24 रूह। 12 हरूफ ला हुँ, इलाहा इल्लल्लाह हुँ, में है, 12 हरूफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, माशा मतलब और इस कि पूरे 24 दिन घंटे के हुँ, अंदर आप 24,000 मर्तबा सांस लेते हैं, हुँ, जिसके लिए जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल अनफासु मादूदात व कुल्लु नफ्सिन यखरिजु बिगैरि जिक्रिल्लाह फहुव मय्यित, यानी अल्लाह ने हुँ, इंसान को हुँ, गिनती के सांस अता किया है, जो सांस बगैर जिक्र कलमा के निकलता है वो सांस मुर्दा है। मुर्दा है। बेशक, बेशक। हाँ, अब जिस बहुत उम्दा। इंसान के सांसों में कलमा नहीं है वो हुँ, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक मुर्दा है। जी, जी, जी। बस एक बात बेशक। अल्लाह की रसूल की अगर लोग मान ले, हुँ, एक बात अगर मान ले कि हमारी सांस जिंदा कैसे हो जी। है, तो फिर ख्याल हुँ, को हुँ। जिंदा करने का तरीका भी मिल जाए, जी, जी। सोच को भी जिंदा करने का तरीका मिल जाएगा, उसकी समझ को भी जिंदा करने का तरीका मिल जाएगा और उसकी सही, नीयत सही। को भी जिंदा करने का तरीका समझ में आए, हुँ। लेकिन क्या है? बहुत अच्छा उम्दा। हज़रत इसमें इसमें हमें ये भी ज़रा-सा हाँ बोलिए ना। बताइएगा कि ये जो कहा जाता है कि कलमे में 2 कुफ़्र हैं, 4 शिर्क हैं, जी तो जी इसके जी, ऊपर है भी थोड़ी-सी बेशक रोशनी बेशक। दीजिएगा कि ये क्या हाँ, है? ये हाँ, भी चार हाँ। शिर्क है बताइए। और दो हाँ जी। कुफ्र है, बेशक है, जी, जी। क्योंकि आग पानी जी। हवा मिट्टी ये शरीक है इसलिए शिर्क कहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आग, हवा, और पानी, दो मिट्टी चीजें शरीक हैं है। जो उसके अंदर ही मौजूद है, जो रूह है और नूर है, आपने देखा नहीं हुँ, है। कुफ्र हुँ, कहते हैं छुपा हुआ है। अंधेरे को, वो हुँ, आपके इल्म में नहीं है, वो अंधेरे में है, आप जानते ही हुँ, नहीं उसके बारे हुँ, हुँ, छुपा हुआ है में। बेसिकली। अगर आप ये ठीक है। सारे पर्दे हटा देंगे तो आपको मुकम्मल कलमा समझ में आ जाएगा और फिर अल्लाह के एक होने का भी सबूत और रसूल की रिसालत का भी सबूत पता चल जाए। बाकी अगर जी, माशाअल्लाह। सही माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तरीके से आपको जानना है तो हुँ, बगैर बैत के आप नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे यही ये बात। इजाजत भी नहीं बेशक, है कि बेशक। मैं आपको खुल हुँ। करके ये राज़े मख्फी रमूज़े फुकराई जाहिर करूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, सही नहीं, बात। बेशक, बेशक ये इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। ये तो सिलसिला आलिया की तालीम है और इसमें जो है वो मखसूस सिलसिले तक ही महदूद होनी चाहिए। ऑफ़ हुँ, कोर्स लाइक इसको हम आम नहीं कर सकते हैं और हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी रम्ज़ में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि फिर मुराक़बा वग़ैरह जो है इनकी क्या अहमियत है और ये किस तरह से होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं? यानी आपके सिलसिला आलिया की तालीमात में मुराक़बे के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है?
देखिए आपने जो कुछ भी कहा सब बजा, लेकिन चलते फिरते जी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते मरते जीते किसी भी वक्त में आपका क्या होगा? सांस बंद हो जाएगा तो आप मर हम्म, जाएंगे ना। तो अल्लाह ने क्या कहा? जी हाँ, आखिरी सांस कलमे से निकली, आखिरी दम हम्म, कलमा जारी रहे। आप इससे ये मालूम पड़ा कि अगर एक शख्स कोई इबादत करता है और वक्त उसका मुतय्यन है, अगर उस वक्त मौत नहीं हुई तो वो हम्म, नमाज के हालत में था क्या? नहीं ना। नहीं, जैसे फजर नहीं, की नमाज पढ़ लिया नहीं, और जोहर के बीच में वो इंतकाल हुआ तो किस नमाज में था? नमाज में नहीं था। किसी में नहीं था। अगर जोहर के बाद वो हुँ, असर के बीच में इंतकाल हुआ तब, असर से किसी में लेकर नहीं, तब भी नहीं था मगरिब के किसी बीच नमाज में में। इंतकाल हुआ तब, नहीं था। मगरिब के बाद वो ईशा के सेम। बीच में हुआ तो, और ईशा के बाद वो सो रहा था, अगर सुबह नसीब नहीं हुआ तब क्या हुआ? हुँ, है? ठीक हो गया। हाँ मुराकबा जी। किस बिल्कुल लिए नहीं। किया जाता है कि हम्म, आप बैठे हैं तो एकदम तन्हाई एकदम सुकून इत्मीनान के साथ आप मुरक्कब हो जाइए, यानी मुरक्कब हो अपने जाए। रब से ऐसा लो लगा लीजिए, ऐसी लगन लग जाए कि वो खुदा तुमसे जुदा हम्म, नहीं है, तो वो तुम्हारे माशाअल्लाह। अंदर हम्म, का सारा हुँ, चीज तुम्हारे हम्म, सामने हो। हम्म, माशाअल्लाह। जो जी, जी। कुछ भी करना है, ये तो यानी कोई तय नहीं कि मुराकबा कैसे हुँ, करना है, इसका जिक्र कैसे करना है, इसका क्या करना, हम्म, जैसा पीर कहे वैसा करना। बिल्कुल, बिल्कुल हक है। बहुत आप ठीक। उम्दा। हम्म, कोई अगर कहेगा कि मेरे मुराकबे से वो खुदा राजी हो हम्म, जाएगा, नहीं। वो उहुँ, कोई कहेगा हम्म, कि नहीं यानी मेरे नमाज से खुदा राजी होगा, नहीं, बल्कि खुदा की रजा जो है वो रजाए मुस्तफा से। रज़ाए मुस्तफ़ा से हम्म, जी, और रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाए मुर्शिद हम्म, में। रजाए मुर्शिद से बेशक, अगर बेशक, मुर्शिद की बेशक। रजा हो गई हम्म, एक पल में आपको अता कर दे, बिल्कुल, बिल्कुल हक है। और नहीं हुई तो आज और कल में भी नहीं। हुँ, बहुत सही। आप पूरी जिंदगी बेशक गुजार बेशक दीजिए, बेशक। है ना। देखिए आलिम इस हम्म, दुनिया में पूरी जिंदगी अपने इल्म सिखाने और समझाने में गुजार दिए, आखिर मरहूम जी। कहते हैं ना। हम्म, हुँ, हुँ, आलिम कहते हैं। साहब को मरहूम हम्म, कहते हैं, हाफिज साहब हुँ, को मरहूम कहते हैं, कारी साहब को मरहूम कहते हैं, और आपके मुफ्ती जी। साहब को भी मरहूम कहते हैं, हाजी साहब को भी मरहूम कहते हैं, नमाजी ना साहब को भी हमारे मरहूम मुफ्ती साहब ना कहते हैं। कहिए। यहाँ तक कि जो भी इस दुनिया से जा रहा है तो वो जी। मरहूम हम्म, क्यों कहला रहा है, जी। और वो रहमतुल्लाह हुँ, अलैह हम्म, क्यों कह रहा है? बताइए। हुँ, जो रहमतुल्लाह अलैह कह सही। रहा रहे हैं वो भी इसी दुनिया से जा रहे हैं, और जी। जो मरहूम बेशक। कहला रहे हैं वो भी इसी दुनिया से जा रहे हैं। हुँ, तो फैसला तो रब का यानी सामने है कि आपको रहमतुल्लाह अलैह बन के जाना है या मरहूम बन के जाना है, हुँ, हजरत बन करके सही। जाना है या मुर्दा बन करके जाना है, बेशक आपको बेशक बेशक। अल्लाह वाला बन करके जाना है या आपको मैयत बन करके जाना है। हम्म, आज कुछ आयता नाम लोगों को मिल गया है, नाजायज, जायज, हराम, हलाल, गुनाह, सवाब, नेकी, बदी, हम्म, कुफ्र, शिर्क, ये कुछ आयता नाम है, लेकिन उसका माने और मफहूम नहीं मालूम। हुँ, हुँ, अगर उसको मालूम सही। पड़ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा हमारी जिंदगी नाजायज है। अगर हमने जायजा नहीं लिया, तहकीक नहीं किया, तस्दीक नहीं किया, तो मेरी सांस भी जब मुर्दा है तो सारा चीज मुर्दा हो गया ना। हुँ, जो सांस सही। बगैर बेशक जिक्र कलमे बेशक। का दाखिल हुआ वो मुर्दा है। हैं? मुर्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बस बिल्कुल। इतनी सी बात है कि हम हम्म, 24 घंटे में 24,000 मरतबा मर रहे हैं। हम्म, गौर करने की हमारा बात है। ताल्लुक तो बिल्कुल, सिर्फ बेशक। सांसों से है ना। अगर सांस बंद सही, हो सही। गया तो हम्म, फिर हमारा शरीर खत्म, और हम्म, सांस चालू है तो बोलते हैं कि भाई अंधा है, आंख नहीं है इसके, बहरा है, कान नहीं है हुँ, इसके, गूंगा हम्म, है, जुबान नहीं है, जी। ये लूला है, हाथ नहीं है, लंगड़ा है, पैर नहीं हम्म, है। लेकिन कोई मुर्दा कहता है क्या? हम्म, मुर्दा तो तब होगा ना नहीं। जब सांस नहीं। बंद हो जाएगा। है? जी, तो जी। बस इतनी हम्म, जी, सी जी। बात है कि कलमे के साथ बंद होगा तो वो जिंदा है,
اور بغیر کلمے کے ساتھ بند ہوگا تو وہ مردہ ہے. ماشاء اللہ، بہت بس اتنی سی بات ہے. آپ یہی دھیان رکھ لو کہ اللہ کے خیال کو سمجھ نہیں سکو گے، ہیں؟ رسول کے خیال جی کو نہیں سمجھ سکو گے، نہ کسی بزرگان دین کے خیال کو سمجھ سکو گے، بلکہ تم اپنے خیال کو سمجھو. تمہارا خیال خود پل صراط، کرو کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں، جاؤ کہ نہیں، دے گا کہ نہیں، اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. یہی کلمہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ لا کے مطلب نہیں، لا کے مطلب ہے. آپ نہیں اور ہے کے چکر میں پھنس گئے. تو جی اس سے آپ آگے نکلو. نہیں اور ہے کہ آگے جب نکلیں آگے گے نہیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے سوا کچھ نہیں. ان اللہ علی صحیح، کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علی کل شیء محیط. بے اس شک کے حکم کے بغیر پتے بھی نہیں ہلتے ہیں. بے تو شک حرام کیا ہے، حلال تو کیا ہے، حضرت جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، ہم نے کھانا کھایا اور ہضم نہیں کر پایا، بولو وہ کھانا کیسا ہو گیا؟ الٹی تو ہو رہا زہر ہے بن یا جائے گا جلاب ہو اندر. رہا ہے، تو کیا حلال ہے وہ کھانا؟ حرام ہے نا. کیونکہ زیادہ حرام. آپ نے کھا لیا ہے تو یا تو ایسی چیز کھا لیا جو آپ کو نقصان کیا، تو نقصان دینے والی چیز حرام ہے. صحیح صحیح صحیح. وہی چیز آپ یعنی کم کھائے جو بھوک نہیں مٹا تو آپ کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ آپ کو جائزہ تھا بالکل ہی نہیں. بالکل. ویسے ہی آپ سو گئے، زیادہ سو گئے تو آپ کا نیند وہ حرام ہو گیا کیونکہ کام چھڑا دیا. اور وہی کم سوئے، اجگی صحیح ہو گیا اور گاڑی چلاتے تھے، آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا، ہوا نا ناجائز. صحیح صحیح. تو ایک ایک پل میں آپ کا بالکل ناجائز ہے اور ایک ایک پل میں جائز ہے. ایک ایک پل آپ کا حرام ہے، ایک ایک پل آپ کا حلال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 اب آپ بالکل کا جی 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 جو پل خوشیاں دے رہا ہے یہ نعمت ہے، عظمت ہے، اور جو پل آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ آپ کے لیے جہمت ہے، باعث عذاب ہے. سمجھیے. جی جی جی. پھر اب آپ بہت دیکھیے، بچپنے کا خیال، جوانی کا خیال، ادھیڑ کا خیال، بڑھاپے کا خیال، ایک دن میں ایک انسان کو کتنے خیال آتے ہیں معلوم ہے؟ 365 خیال. جی. یہ 365 خیال میں 182 خیال من جانب رب اور 182 خیال من جانب شیطان. کتنا ہو گیا؟ 364. آدھا آدھا 364. اور ایک 364 ہو خیال ہے گیا. آپ کے پاس، ایک خیال آپ کے پاس بچا ہوا ہے، آپ کس کو دیں گے؟ جس کو دیں گے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. جی جی جی. جیسے بہت. آپ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں نا، تو آپ کا ایک ووٹ ہے جو جتا بھی سکتا ہے، ہرا بھی سکتا ہے. تو 24 صحیح گھنٹہ صحیح. میں آپ ہار جائیں گے اگر ایک خیال آپ نے شیطان کو دے دیا. آپ جیت جائیں گے خیال اگر رحمان کو دے دیا. بے شک. واہ. بس ایک ہی خیال پر بہت آپ عمدہ. کا سارا دار و مدار ہے. اب آپ یہ دیکھیے، واہ. اس میں سے آپ کے پاس نام ہے 365، جس میں سے 99 نام ہے اللہ کے، 99 نام ہے شیطان کے، اور 99 نام ہے اللہ کے رسول کے. جی. آپ کے پاس ظاہری نام 34 اور یہ باطنی نام 34. کتنا ہو گیا؟ جی جی. 34 اور 34 برابر. 68. اور یہ 99 یعنی یہ ہو گیا، تو کل 365 ہوا. اب آپ کو ایک یعنی میں گرامر جی. سمجھاتا ہوں. 34 نام ہے آپ کا ظاہری، جی. ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو 4 اور 3 7. باطنی نام ہے آپ کے پاس 34. 99 نام اللہ کا، کتنا ہو گیا؟ یعنی یہ جی. 34 اور 99 133. 133 ہوا نا. تو جی 3 جی. اور 3 6 اور 1 7. اور پھر 99 نام 133 اور 99 232. 2 اور 2 4 اور 3 7. ہو گیا. 232 بھی یعنی 7 ہو گیا. اور پھر 99 جی. آپ جو ملا دیجئے، 232 اور 99 331. 331. 331. 3 اور 3 6 اور 1 7. تو آپ جی 7 جی. ہیکل کو جانو قرآن میں ہے، 7 7 منزل ہے کو کیا؟ جانو قرآن میں ہے،
सात हम्म तबक आसमान को जानो कुरान में है, सात तबक जी जी जमीन जी को जानो कुरान में है। अभी माशा बचा अल्लाह कितना है? जी जी 34 ना, 34 बचा जी है ना। हाँ तो आप हम्म यानी ये ना आप कितना था, 331 और 31 34, 31 365 331 और 34 हो गया 365 365 बराबर। बिल्कुल। तो अब 365 यानी 3 और 6 9 और 5 9 14 14 तो 14 9 और तबक 5 है। 14 और बेशक बस बेशक फिर 7 बता दिया 7 और ना 7 कि 14। भाई यानी 7 मंजिल है और 14 तक बहुत 14 सजदे जबरदस्त हैं कुरान में। माशाल्लाह बहुत उम्दा सात बहुत तबक जबरदस्त आसमान और 7 जमीन 14 हुए। तो 7 जी का यानी ये ना आप साथ में लेकर के घूम रहे हैं, ये 7 हैकल है। क्या है 7 हैकल हैकल? यानी 7 किस्म का कला, ये भी बताइए ना जरा। 7 किस्म के रंग, 7 किस्म का ढंग। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जी 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 है कि नहीं? बिल्कुल फिर बिल्कुल जब आप 6 चीज को जान जाएंगे तो 7वां ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। जैसे अभी मान लिया जाए कि हम एक घर में हैं, तो 4 दीवार है और छत और फर्श, कितना हुआ? 6। तो 7वां तो हम है ना मौजूद। जी अगर हम नहीं रहेंगे तो ये हम्म घर को कौन जानेगा? सही इसी बात तरीके से हमारा वजूद को 6 चीजों से बनाया। 7वां वो मौजूद है जो जान है, जान रहा है। बहुत खूब उसके लिए ये जहान है ना, क्योंकि जिस तरीके हमने अपने घर बनाए उसी तरह अल्लाह ने ये घर बनाए अपने रहने के लिए। जी जी और फिर कह रहा है वो वल इंसान, मैं इंसान के अंदर, समझ रहे? और रूह मिन अमरी रब्बी, और कह रहा है कि रूह उसके इसी के अंदर रूह है, वो मेरी है, अमर है कि नहीं? अब ये भी कह रहा है अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, अल्लाह बाकी रहने वाला है। तो अमर रहने वाली क्या चीज है? रूह। बाकी रहने वाली क्या चीज है? अल्लाह है। बिल्कुल तो बिल्कुल अमरुल्लाह जानना है। माशाल्लाह बहुत बहुत उम्दा। और ये इसमें तहकीक का बहुत मादा है आपके जो डिस्कशन में। और माशाल्लाह हमारे लिए तो जो है ये एक इस तरह से है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा जानने में नए नए हकायक खुल रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस भी ऑब्वियसली इसको एंजॉय करेगी। हकायक खुल नहीं रहे, ये हम कुछ अगले भी नहीं सवाल की खुल तरफ रहा है। चलते हैं। इससे क्या होगा? अरे आपका तलवे से लेकर तालू तक बोलना शुरू कर दे, बाल से लेकर खाल तक बोलना शुरू कर दे, आपका जर्रा जी जर्रा पुकार करके कहना शुरू कर दे। हाँ तब ना यानी जैसे होगा, देखिए स्टार्टिंग क्योंकि हर पॉइंट शय यही में है ना, जान है ना, जानना है हर बच्चों शय के को। लिए। देखिए हम बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है ना, यानी कि हम तो यही समझ रहे हैं ना कि इस यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये बातें हम सुन शुरुआत के तो यहीं इनको से होती जज्ब है ना करना, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना, तो शुरुआत चलिए तो यहीं बहुत से है ना। बहुत अच्छी बात है। तो अरे बाकी आप लोग तो बच्चे नहीं है, आप लोग बचे हुए हैं। हाँ अभी तो आप लोग बचे हुए हैं जो दीन को यानी ये ना बहुत दूर तक फैलाना है। हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बहुत जी लोग हैं माशाल्लाह जो माशाल्लाह अपने जनाब। अपने काम में तो इसी लगे हुए हैं, आप लोग बचे हुए हैं। हम्म? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। बहुत बिल्कुल ये आप ही सोच आप लोगों लोगों का की सलामत आप ही रखे बुजुर्गों मौला, की है। आप लोग के ये ना आमीन आमीन तहकीक और तस्दीक में इजाफा फरमाए मौला। आमीन तमाम सुम्मा सामीन हजरात के कल्बो जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला करे, और तमाम बुजुर्गान आमीन दीन की मोहब्बत अकीदत में कमी ना आने पाए। हर एक बुजुर्गों ने दीन की कदर व कीमत हो, चाहे वो जिस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक और मैं खुलासा आपको कर दे, जी क्योंकि आपके जी इस चैनल में मैं जब आया हूं और आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है, तो सामीन के ज़हनो दिमाग में कुछ खास बातें पेवस्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल इंसान जी को 2 काम कर लेना चाहिए। एक काम जी फर्ज अदा करना चाहिए और दूसरा काम सुन्नत अदा करना चाहिए। जानते हैं फर्ज क्या है? ईमान कबूल जी करना फर्ज है और सुन्नत निकाह कबूल करना, है ना? ये 2 जी काम जी करना, जी और इसके बारे में सोच कर, तहकीक कर और तस्दीक करके उसके बाद यकीन करें। चलते फिरते दुकान नहीं गई। बेशक अच्छा उसके बाद फिर एक और चीज समझ जाए, बेशक जबर जेर पेश, ये 3 चीजें जान जाए।
हम्म, है जबर जेर पेश, जेर ये जबर तीन पेश, चीजें वो समझ ले जबर जेर कि पेश, जबर और जेर और पेश क्या चीज। एक आदमी इस दुनिया में आया, वो किसी का बेटा है, जी किसी का बाप है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, किसी का हाँ जी, बेटा है और किसी का ऐसे बाप है। तो ये तीन मंजिल है, वो खुद कहाँ है, बाप के जगह पे या बेटे के जगह पे, वो किस जगह पे। तो पता चला कि जबर जो है ये बाप का जगह है, बेटा का जगह जो है वो जेर है, उस्ताद का जगह जबर है और शागिर्द का जगह जो है वो जेर, पीर की जगह जो है वो जेर, जबर है, मुरीद की जगह जेर, है ना। जेर है, ये जबर जेर समझ में आ जाए, ऑटोमेटिक पेश हो जाएगा, यानी अल्लाह ने उसे पेशवा बना दिया, क्योंकि दोनों के बीच जो माशाल्लाह है वो पेश है। माशाल्लाह अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं कि आप अपनी औलाद के तरफ भी देखो, अपने माँ बाप के तरफ भी देखो। तो माँ बाप आपके, औलाद आपके, और आप अपने बारे में भी सोचो ना, कि नहीं। जी तो हम क्या हैं, हमसे ऊपर वाले क्या हैं, हमसे नीचे वाले क्या है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये तीन चीजें जिसने समझ लिया वो कभी भी बेअदब नहीं होगा, क्योंकि औलाद को ये इल्म हो जाएगा कि मेरे माँ बाप जबर है जबर और मैं जेर हूँ। जेर तो मैं अगर जबर हो गया तो जबर जो है वो जेर हो जाएगा। हैं? जी 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 तो जबर को जेर करना और जेर को जबर करना ये सबसे बड़ी गुनाह। इसलिए अल्लाह जबर का मकाम रखता है, इसलिए जब्बार नाम, जब्बार बेशक बंदा जेर है। अल्लाह के रसूल जो है वो जबर के मकाम पे हैं, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वो मेरे महबूब की इताअत मेरी इताअत। बेशक तो उम्मती को जेर रहना चाहिए। पीर मकाम जबर पर है, पैरवी करना चाहिए। जी मुरीद जेर है, बाअदब बा एहतराम अपने मुराद को जाहिर करना चाहिए। उस्ताद जबर की जगह पे जी और शागिर्द जेर की जगह पे, बड़ा अदब और एहतराम से उनके इल्म से सरफराज होना चाहिए। इमाम भी जबर है और मुक्तदी जेर जेर है, बहुत उम्दा है कि नहीं। अब लोग यानी ये ना तरह तरह के यानी ये ना सोच पैदा कर लेते हैं और ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि जबर का मकाम जेर हो चुका है और जेर का मकाम जबर हो चुका है। जो छोटा था वो बड़ा बन गया और जो बड़ा था उसको छोटा बना जी दिया। जी जी हैं? ये सबसे बड़ी गलती गलती है कि आसमान को जमीन आपने बना दिया, जमीन को आसमान बना दिया। सही ये जिसके अंदर बात आ गई कि हमको कुरान समझना है। अगर कोई बोले कि हम यानी ये ना अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बोलेंगे, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन पहले बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, आप तरतीब है ना आपने कि भाई बिगाड़ पहले दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पढ़ते हुए आओ गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन पे खत्म करो। सही बिल्कुल तो फिर इस तरीके से तरतीबवार तरतीबवार इंसान की जिंदगी समझ। अभी आप लोग जो है ना जिस उम्र में है, मौला का शुक्र है कि बहुत बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और इस मेहनत को मैं देख रहा हूँ कि हर एक इलाके में, हर एक खित्ते में, हर एक जगह आप लोगों का ये मेहनत पहुंच रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया हजरत, आप लोगों की दुआ है, आप हाँ, लोगों की दुआ है। मैं इस चैनल का नजर है जनाब, ज्यादा से आपकी ज्यादा नजर है। जैसे मैं दुआ गो हूँ कि ये चैनल आपका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आमीन, करे, आमीन। फले फूले, और आप लोग और ज्यादा मेहनत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझसे जहां तक हो सके आप बिला झिझक 24 घंटा आप लोग के लिए दरवाजा खुला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी वक्त भी आप लोग चाहेंगे, आपके किसी किस्म की कोई बात है, सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, बहुत शुक्रिया। किसी किस्म की कोई भी मेरी तरफ से मनादी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सीखने वाला चाहिए, जी जो मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे अता किया है, मुझे देने के लिए बोला है, बिल्कुल रखने के लिए थोड़ा बोला। सही तो मैं देने के लिए बैठा हुआ हूँ। आए किसी भी सिलसिले का हो,
अपने पीर का तसव्वुर करे, अपना लेकर के जाए बिल्कुल, पीर का सबका। बहुत बड़ी बात। मेरे पास कोई भी आता है, बेशक। मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप कहीं से मुरीद हैं? बोले नहीं, तो मुरीद होकर के आओ। सही बात। आप मुरीद हैं? बोले हाँ मुरीद हैं, तो अपने पीर का तसव्वुर करो, बैठ जाओ। सही बात। बेशक बेशक बेशक। नहीं बोले मेरे पीर साहब पर्दा कर गए, तो जाओ तालिब हो जाओ। हो सकता है, क्यों नहीं। जब गौस पाक 14 पीर किए तो आपको कौन रोक रहा है? सही बात। यहाँ जाहिरी है कि बीबी दुनिया से चली गई, दूसरी बीबी ले आया तुमने। जी जी हैं? जी। तो पीर साहब चले गए, दूसरा पीर साहब नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तुम यानी जो है ना पीर की पूरी तालीम भी नहीं ले पाए। पहला क्लास में आप थे, मुकम्मल होने के बाद दूसरे क्लास में गए, दूसरे क्लास से तीसरे, इस तरीके से मुकम्मल किए ना। तो एक मकाम ऐसे है ही। पीर, एक मर्तबा है पीर, एक मंजिल है पीर, एक एहतराम और एक सम्मान है पीर, एक जिम्मेदारी है पीर, बेशक बेशक बेशक। जो वो निभा रहे हैं। मुरीद का भी इसी तरीके से मामला है कि मुराद उसके तरह तरह के हैं, वो हर एक मुराद के बारे में पूछे। माशाअल्लाह, बिल्कुल। तो मुरीद के हर एक मुराद के बारे में जब उसको तहकीक हो जाएगा, मुकम्मल वो मुरीद बन जाएगा। अभी मुरीद हुए हैं लोग, जी जी बने नहीं। सही। बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। इसी इसी और ये बेशक किताबों से बेशक। नहीं तो मिलता, याद अमीर भाई, रखिएगा। हमारा अगला सवाल हाँ? ये बिल्कुल बिल्कुल, किताबों से तो नहीं मिलेगा ये बात। बिल्कुल नहीं मिलेगा किताबों से। बहुत उम्दा। नहीं, ये बुजुर्गान दिन की अगर निगाहों से मिलता। आप ही किताब लिख दें तो फिर शायद मिल सकता है। नहीं 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 मिलेगा, क्योंकि किताबों से अगर मिलता तो कुरान से आला कौन सी कोई किताब? किताब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इन नहीं, निगाहों से और सीने से मिलता है, वाकई। सीने का इल्म है ये। फिर अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन? अल्लाह ने कहा मैं किताब तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, लेकिन उस नूर के रोशनी से देखना, यानी मेरे महबूब जो रोशनी से बताए वही मानो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि मैं दो भारी चीजें तुमको दे के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। बेशक। यानी मेरे अहले बैत की समझ से समझना। बेशक 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 बेशक। बेशक। तो आप बगैर अहले बैत के निस्बत के आप नहीं समझ सकेंगे। नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन। नहीं समझ। ऐसा होता तो दवा खाना जो खोल के बैठा है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है होती उसको। सही बात है, हैं? बिल्कुल। कुतुब खाने वाले जो है ना सबसे बड़े आलिम जी। होते। फिर सही बात। इसी से जुड़ा हुआ आपसे जो कुतुब खाना सवाल, खोला है, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ हजरत, हाँ। कि आज के दौर में जिस तरह से आप हाँ। देख रहे हैं, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप कि आज के दौर में जाली पीरों का बहुत जबरदस्त मसला चला हुआ है। जाली पीर बहुत फैले हुए हैं आजकल। तो इस बारे में आप बताएं कि जाली पीरों की क्या पहचान है और कामिल पीरों का क्या पहचान होता है, और जाली पीरों से किस तरह बचा जाए। क्योंकि जो एक नया शख्स होता है वो अक्सर देखा जाता है कि वो जाली पीरों के पास फंस जाता है और वो उसे मतलब उसको बहुत परेशान करते हैं, या यूँ कहें कि उसके दौलत पे उनकी नज़र होती है, उसके मुरीद के पैसे पे उनकी नज़र होती है। इस तरह का बहुत सारा मसला देखने को मिलता है। तो आप इस बारे में किस तरह बताएंगे कि जाली पीरों से आखिर किस तरह बचा जाए, कोई निशानी हो कि किस तरह से बचा जाए? देखिए मैं क्या बताऊं, सबसे बड़ी चीज यही है कि जब आप किसी भी पीर के पास जाएं, जी जी जी, तो उनका सनद देखें। सनद आपको सनद जब दिखाएंगे ना, तो उनका सनद यानी सर्टिफिकेट, जब आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो उनको जिन्होंने खिलाफत दिया है कि नहीं, तो उसके बारे में आप तहकीक कर लें कि वो पर्दा किए हैं, वो बुजुर्ग के बारे में चर्चा ऐसा है, तो आप उन्हीं के खलीफा हैं। इसके मतलब वही चीज आपके अंदर भी रहना चाहिए। जी जी जी, जाहिर सी बात है, आप वारिस हैं, आप खलीफा हैं, इसके मतलब जो आपके पीर के अंदर था वही आपके अंदर भी होना चाहिए। बेशक। हाँ, तो अब किसी भी पीर को जानने के लिए आप उसको ऐसे जान सकते हैं, जब आप उनकी सोहबत में बैठेंगे और बैठ करके और उसके बाद ये तहकीक कीजिए कि आपको खिलाफत किसने दी,
और खिलाफत नामा में क्या लिखा हुआ है, जी उस पर वो पाबंद हैं या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनके खिलाफत नामा में लिखा हुआ रहता है जी कि ये मुरीद, ये मेरा मुरीद है और ये मुराद तक पहुंच गया है, इनको मैंने जो इजाजत दिया है वो क्या क्या है। तो इजाजत उसमें लिखा रहता है कि मुरीद कर सकते हैं या खिलाफत दे सकते हैं या तालीब कर सकते हैं या फुकरा बना सकते हैं या फकीर बना सकते हैं या तबंगर बना सकते बिल्कुल। हैं या कलंदर बना सकते हैं, उसमें है ना। लिखा वो लिखा जो जाता है। बना सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल हाँ, वो उसमें लिखा हुआ रहता है। बेशक बहुत अच्छा हजरत, ये जरूरी है कि मतलब वो दिया ही जाता है, यानी ये सनद है दिया जो ही वो जाता ये है। खिलाफतनामा आज के दौर जो में दिया जाता है। आपके लिखित नामा चाहिए ना, हम कह देंगे पूरी जमीन मेरी है, जब अल्लाह की है तो मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो सब जमीन तो मेरी है ना, जी आप बोले मान लेंगे? लिखित होना चाहिए। नहीं मानेंगे। रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है और मैं उन्हीं का उम्मत हूँ, तो मैं सारे आलम का हूँ ना, ऐसा नहीं होता। आपको आप जब पैदा हुए तो आपको सर्टिफिकेट मिला, ये बर्थ सर्टिफिकेट। जी जी आपकी शादी हुई तो निकाह सर्टिफिकेट मिला। आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़े तो आपको यानी जैसे आपके इल्म का सर्टिफिकेट मिला। बिल्कुल तो क्या मुरीद को मुरीद होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? जरूरी तो उसको मिला है, यानी शजरा शजरा शरीफ। उनका शजरा देखो पूरा कि अल्लाह के रसूल से लेकर के पीर तक कितनी पीढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसके बाद उसमें कानून देखो, कानून क्या लिखा हुआ है। देखो कानून लिखा हुआ रहता है। देखो मैं आपको कानून सुनाऊं क्या? जी हजरत, हाँ माशाअल्लाह। हाँ, मैं आपको कानून सुना जी देता जी हूं। जी ये देखो, ये देखो, ये कादरी, हाँ, ये कादरी की खिलाफतनामा है, ये चिश्ती खिलाफतनामा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये देखो इससे भी बड़ा है, जैसे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो उससे भी बड़ा है, वाह, ये मेन है ओरिजिनल। ये सिलसिला है कादरिया का है। जी हाँ, ये सिलसिले कादरिया का है, देख रहे जी हैं? हजरत। इसमें क्या लिखा और आता है? हाँ, तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये जी आपको जी बता। जी ये सिलसिले चिश्तिया का है। चिश्तिया सिलसिला। हाँ हाँ, चिश्तिया अहले बहिश्तिया का। आपको मैं पढ़ करके यानी जो सुनाता हूँ। जी हजरत। लिखा हुआ है इसमें कि मौसूफ राज़े मख्फी रमूज़े फुकराई, हाँ, वो असरारे जल्दी व खफी से वाकिफ हो चुके हैं। इन्हें रूबरू सज्जादा नशीन हरे गुम्बद बीजापुर शरीफ व फुकरा अहले तरीक व मशाइख निज़ाम व खुलफाए जी एहतराम की मौजूदगी में खिलाफत चिश्तिया बहिश्तिया खुलफाइया से सरफराज किया। माशाअल्लाह ये सर्टिफिकेट है। माशाअल्लाह। मौसूफ मुरीद तालिब, मुरीद तालिब फकीर और खलीफा बना सकते हैं। ये हुआ सर्टिफिकेट। सिलसिले तरीक 4 पीर 14 खानवादा आलिया मजाहम ना हो, जी है ना। अब देखिए, अब उसमें कानून लिखा हुआ है कि फातिहा हुजूर सरवरे कौनैन व ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हिंदल वली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया बहिश्तिया के जितने भी बुजुर्गाने दीन हुए वो माह ब माह साल ब साल फातिहा किया करते थे, तुम भी करो। जी जी यानी वो जो प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम की भी इजाजत है, लिखा हुआ है उसी में। ये तकवा और तहारत और शरीयत मोहम्मदी पर कायम रखे, खिदमत खल्क को अपना शआरे जिंदगी बनाए, आदाब महफिल समा मलफूज रखे। देखिए महफिल समा की भी इजाजत बिल्कुल। हाँ, तालिबान हक को जिक्र व मुराकबा की तलकीन फरमाए, यानी उसको कोशिश बताएं कि तुम जिक्र किया करो, मुराकबा किया करो। जी अभी देखो यहाँ लिखा हुआ, मुझे खिलाफत चिश्तिया बहिश्तिया खुलफाई, ये कौन लिख रहे हैं? मेरे पीरो मुर्शिद लिख रहे हैं। पीरो मुर्शिद लिख रहे हैं कि मुझे खिलाफत चिश्तिया बहिश्तिया खुलफाइया पीरो मुर्शिद शेखुल वासिलीन कुतुबुल अख्ताब आरिफ बिल्ला हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद
हुसैन शाह कादरी उल चिश्ती इफ्तिखारी अल हसनी वल हुसैनी पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैहि से हासिल माशाल्लाह है, माशाल्लाह। वाह, है कि नहीं? माशाल्लाह। तो अब इस तरीके से यानी जैसे जिनका जहां से ताल्लुक है वहां से वो अपना जी बताते हैं। जी जी जी। हाँ, इस नहीं, तरीके से माशाल्लाह ये मुरीद जबरदस्त। का ये शजरा है, मयार जो है मुरीद का सज ये मुरीद का शजरा है। जी। हाँ, ये देखिए मुरीद का शजरा है, इसमें कानून लिखा हुआ है। कानून क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इरशादात सबसे पहले है मुरीद पर फर्ज क्या चीज? जी। अव्वल अपने रहबर और मुर्शिद को सबसे अफजल वाला समझे। अगर उससे अफजल वाला किसी को समझ रहा है तो वो इसके अंदर ईमान नहीं है, जी। वो एक बेईमान है। हाँ, बेशक। समझे? इसकी इत्तिबा तामील हुक्म में तरीक ना करे, जी। यानी उसके इत्तिबा करने में और उसके हुक्म में, अगर हुक्म मिल गया तो उसमें देर ना करे। हाँ, और तमाम मामलात में दिलो जान से अपने मुर्शिद की खुशी और रजामंदी को मुकद्दम जाने और सबकी मोहब्बत पर इसके पीर को तरजीह दे। सही। इख्फाए राज को फर्ज और इजहार को नाजायज जाने और जो ताकीदन दौराने दिल अता किया गया उस पर कादिर और शाकिर जी। अल्लाह के रसूल का फरमान अल अनफासु मादूदात व कुल्लु नफ्सिन यखरिजु बिगैर जिक्रिल्लाहि फहुवा मय्यत। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को गिनती के सांस अता किया, जो सांस बगैर जिक्र कलमा के निकलता है वो मुर्दा है। अपनी सांसों की निगाहत करे, सांसों की निगाह। जिक्रुल लिसान अलग लका व जिक्रुल कल्ब वसवसा व जिक्रुल रूह मुशाहिद। बिल्कुल। 3 तरीके का जिक्र करने वाले लोग हैं, एक जुबान से, एक दिल से, एक रूह से। सही। हाँ, रूह से। तो दिल से जिक्र करने वाले, रूह से जिक्र करने वाले और जुबान से जिक्र। इसलिए कहा इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब और अरकानुम बिल जिनान। हाँ, अबे देखिए अब इसमें है कि मुरीद के जो भी हालात वारिदात हो वो जुबानी या तहरीरी अपने पीरो मुर्शिद को इत्तला करते हैं। जी, ये जरूरी है। यानी हर एक चीज तो हाँ, तो वही मुरीद है जो खुद तो किया नहीं। जैसे क्या सरकार के सामने आकर अबू जहल कहता है कि मोहम्मद तुम काले कलोटे हो, बदसूरत हो, बेढंगे हो, तुम जादूगर हो, तुम बेदीन हो, तुम गुमराह करते हो, तुम ईमान छीन लेते हो। इस तरीके से वो अपनी बातें यानी जब बोला, अल्लाह के रसूल फरमाते आमन्ना सदक सद। सही। उसी जगह पे दूसरे सहाबी हैं जिसके बारे में बताते हैं कि वो सहाबी सिद्दीक़ अकबर है। आकर कहते हैं सरकार आपकी आंखें ऐनुल्लाह है, कान समीउल्लाह है, जुबान कलीमुल्लाह है, आपका दम रूहुल्लाह है, आपका दिल काबतुल्लाह है, आपका जिस्म नूरुल्लाह है, आप सरापा रब्बुल उला है। आपके देखना गोया रब को देखना, आपको मानना गोया रब को मानना, आपको जानना गोया रब को जानना, आपको पहचानना गोया रब को पहचानना। ये तमाम बातें आप कर रहे थे, तब तक एक सहाबी है जिनको अबू हुरैरा कहते हैं, आ करके कहते हैं सरकार इसकी तहरीर कर दिया जाए। बोले हाँ कर दो, क्या लिखा जाए? जो अबू बकर सिद्दीक ने कहा वो या जो अबू जहल ने कहा वो? कहा दोनों लिख दीजिए। बताओ, दोनों लिख दो। बोले सरकार दोनों कैसे लिखा जाए? दोनों के बारे में लोग तो समझ नहीं पाएंगे ना, हक क्या है ना हक क्या है। बोले दोनों हक है। दोनों कैसे हक? तो बताया गया कि अल्लाह ने मुझे एक आईना बना करके भेजा और आईने में जो भी देखेगा वो अपने आप को देखेगा। बिल्कुल, अपने आप को देखेगा। तो पीर आईना है, बेशक मुरीद के लिए पीर उसका आईना है। और जब आईने में देखेगा और जिस मुरीद को जाली पीर लग रहा है, इसके मतलब मुरीद ही जाली है ना। ये भी पहचान कि पीर जाली। आपको क्या लगता है कि पीर जाली है कि मुरीद जाली है?
सबसे बड़ी बात है कि ताज्जुब होता है मुरीद को सच्चा होना जो चाहिए। औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ बोल रहा है, जी सुनिए, जो औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ बोल रहा है, अब बताओ कि बोलने वाले के अंदर से आवाज निकल रही है कि बाहर से? अंदर से। अंदर तो से। मतलब ये है कि वो औलाद खराब। अगर माँ बाप औलाद के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो माँ बाप खराब। जी जी जी। उस्ताद अगर शागिर्द के खिलाफ बोल रहा है तो वो उस्ताद खराब। शागिर्द अगर उस्ताद के खिलाफ बोल रहा है तो वो शागिर्द खराब है। तो बोलने वाला ये नहीं सोचता कि मैं अपने गिरबान में देखूं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी जुबान है, मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है। तो मैं एक उंगली का इशारा आपके तरफ किया, ये 3 उंगली का इशारा मेरे तरफ है कि नहीं है? बिल्कुल। कोई जाली उली होता नहीं। लफ्ज़ पीर पर जान दे दो और जान ले भी लो। पीर मन खुदाए मन, खुदाए मन पीर मन। अगर पीर नहीं होता तो पैरवी किसकी करते? बेशक बेशक। अरे एक ने बताया झोटा पीर, छोटा पीर, लोटा पीर, हणिया पीर, ये सारे पीर मिल गए लेकिन अपना पीर नहीं ढूंढ पाया। ताज्जुब हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अफसोस। लफ्ज़ पीर समझना पड़ेगा कि पीर किसी इंसान का नाम नहीं है। जी। अभी आप मुझे पीर बोलोगे गलत, मैं एक मुरीद हूँ। जी जी जी। अपने पीर का। बेशक। वो मुरीद बोलेगा कि मेरा पीर है, तो वो पैरवी करेगा, खुद ही लोग जान जाएंगे कि ये इसका पीर है। मैं जब यानी किसी की पैरवी करूंगा वो लोग जान जाएंगे कि ये इसका पीर है। सही सही। जाते पीर, जाते रसूल, जाते खुदा, यही ईमान। अगर इस पर ईमान है तो ठीक है, वरना तो वो नहीं मुरीदा, नहीं मुरीदा, नहीं मुरीद। बेशक बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत उम्दा। और हम तो जो है एक तरह से गर्विदा होके बैठे हुए हैं, एक तरह से बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो अगला एक सवाल है जो आवाम के लिए है, आवाम की भलाई के लिए, आवाम नास के लिए, कि जैसे आज के दौर में ये जादू, जिन्नात और ये किसी ने कुछ कर दिया है, बदनजरी, रोजगार के मसाइल या औलाद के नाफरमानी के मसाइल, बच्चियों के रिश्ते के मसाइल, तो इस तरह से बहुत सारे मसाइल आज के दौर में आम है। और लोग जो हैं वो एक ये मयार या एक तरह से उनको तालीम तो है नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है, तो वो आमिलों के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे किसी के साथ अगर ये इस तरह के मसाइल हैं जादू जिन्नात के और या बदनजरी के, तो आपकी तालीमात की रोशनी में वो क्या करे, किस तरह से अपना इलाज कर सकते हैं और वो ये आमिलों और ये जाली लोगों के हाथों से बच सके, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। यही तो मैंने ये जानना चाह रहा था, कोई तो पूछे। अच्छा अच्छा। देखिए एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप ये मुकम्मल तरीके से समझ जाएंगे कि कुछ भी नहीं है, वहम के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और कुछ है तो है। आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक शख्स था और घर की मरम्मत कर रहा था, कवेलू वाला उसका घर था, अबरेला समझ रहे हैं, कच्चे मकान। तो वो बारिश से पहले अपने घर की मरम्मत कर रहा था, तो उसको सांप ने काट लिया, लेकिन काम में ध्यान रह गया, उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया किसने काटा। वो सोचा कि यानी कोई कीड़ा उड़ा काटा होगा। 1 साल के बाद फिर चढ़ा तो देखा कि सांप का केचुर है। उसके ध्यान में आ गया कि मुझे सांप ने काटा था, जहर फैल गया। उसको 1 साल के बाद यानी ये न जहर फैला। जब ये उसको यकीन हो गया कि सांप ने ही काटा था, वो मर गया। आप क्या बोलेंगे इसको? होता कुछ नहीं है। अब वो वहम जब हुआ तो हाँ, वो एक वहम था। दूसरा वहम का एक और सुनाता हूँ आपको। अमेरिका के एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि एक शख्स है जिस पर फांसी का हुक्म है, तो उसने ये कहा कि इसको फांसी मत दो, बल्कि कोबरा से इसको कटवा। अब आंख में पट्टी बांध दिया और सेफ्टी पिन 2-3 जगह चुबा दिया और आंख की पट्टी खोल दिया। वो मर गया। क्यों मर गया? उसको यकीन हो गया कि मुझे सांप ने काट लिया। सांप ने काटा। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो यकीनन सांप का ही जहर मिला। तो ये इंसान की जो दिमाग है ना,
یہ ہر جی چیز کو اپناتا ہے اور ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں، آج کا کوئی مولانا نہیں ہے جو شبستان رضا سے دعا اور تعویذ نہیں لکھ رہا ہاں صحیح ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. تعویذ بالکل لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا شبستان ہے؟ رضا ہاں، لکھ شبستان رہا رضا ہے میں لکھ سے رہا تعویذ وہ نقل کر کے دے دیتا ہے. ہے. عامل کوئی بھی نہیں میرے کو ملا نہیں. ہے، کیونکہ ڈر اتنی ہے ہوں کہ اگر میں 40 دن یہ عمل کروں گا تو بھوت آئے گا، شیطان آئے گا، اتنا بڑا بڑا دانت والا آئے گا، اتنے بڑے بڑے بال والا آئے گا، اور اس کے بعد اگر میں بھاگ جی گیا تو پاگل ہو جاؤں گا. اور ہوئے بھی ہے. جس نے بھی جی کوشش کیا یقیناً یعنی آخری وقت دھوکا کھایا اور وہ پاگل ہوا. بہت بڑے بڑے عالموں کو بارے میں سنا ہو کہ پاگل گھوم رہے تھے. ہیں؟ جی تو آج کے ٹائم میں کیا ہے، وہ نقل کیے اور چھپی ہوئی بھی تو آتی ہے نا، چھپی ہوئی بھی جی تعویذیں ہاں ملتی ہے. جی ہاں ہاں، بالکل ارے ٹکے ٹکے ایمان جی بکتا ہے، ٹکے ٹکے اسلام بکتا ہے، ٹکے ٹکے قرآن بکتا ہے. بکتا. وہ اللہ نظر آ جاتا صحیح تو اس بات کو بھی بیچ دیتے لوگ. اتنا یعنی یہ نا لوگ یعنی یہ بے روزگار صحیح گھوم بات رہے ہیں. بالکل سمجھے؟ ہاں، صحیح. تو آپ کو ہاں بتاتا جی ہوں میں بہت. کہ یہ جو تعویذ آپ کو دیا نا تعویذ، تو آپ کا ہوں ایمان جو ہے اس تعویذ پہ آ کے لٹک گیا. اب بتاؤ میرے کو، جی قرآن آپ بغیر وضو نہیں چھو سکتے. چھو سکتے ہیں؟ نہیں. اور قرآن آپ کو بغیر وضو کا چھو رہا ہے. آپ ہاں کے گلے میں ہے نا، آپ بے وضو رکھتا ہیں ہے. آپ، تو قرآن آپ کو چھو رہا ہے نا، آپ نہیں چھو رہے ہیں. آپ بتا دو، آپ چھوئیں گے تو گناہ، اور وہ چھوئے گا تو آپ کو یہ نہ کوئی گناہ نہیں. چلو آپ کا صحیح وہ بات. ٹوٹ کے گر گیا تو کتنے لوگوں کے پیر کے نیچے آ رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ صحیح بات. کتنی تو بے جتنے حرمتی ہو رہی لوگوں ہے کے اس کی. پیر کے نیچے آ رہا ہے اس کے اندر ایک ایک الفاظ میں اللہ نے تاثیر رکھا ہے، جس کے بارے میں جی بتایا جاتا ہے کہ ان تاثیرات کے الگ الگ ہاں موکلات جی ہیں. جی بالکل. فرشتگان کی کہیں تو فرشتے بتایا گئے رحمت کے، ہے نا، تو پتا چلا کہ زحمت کے بھی بالکل تو ہے نا، کہ وہی تعویذ کو پیر کے نیچے سے روند رہے ہیں لوگ. صحیح بات. جس کو رحمت بنائے تھے اسی کو جہمت بنا کر کے گھوم رہے ہیں لوگ. تو پتا چلا ایک نے تعویذ پہنا تھا، ٹوٹ کے گرا تھا، 10 لوگوں نے دبا کے نکل لیا، تو وہ پھنس گئے 10 لوگ. ہیں؟ جی اسی طریقے سے صحیح. وہ پھنساتا چلا گیا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ. ایک کو ہسٹیریا کا بیماری ہو گیا ہے. یہ بھوت شیطان وطن ہوتا نہیں ہے، ایک ہسٹیریا بیماری ہوتا ہے، سمجھے؟ اچھا اچھا. جی ہاں، جو اللہ کے رسول نے 14 صدی کی قیامت کا بیان فرمایا ہے کہ 14 صدی کی قیامت ہوگا جس میں بیٹا باپ کا کہا نہیں مانے گا، بیٹی ماں کا کہا نہیں مانے گا. جانتے ہو کیا یہ؟ 14 سال کی جی عمر ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں. اس وقت کیا جی مت جی ہوگا؟ کیا بولے؟ اس وقت کیا مت ہوگا؟ تو کیا نفسا مت نفسی ہوگا. کا کیا عالم مت ہوگا. ہوگا. وہ نفسا اور نفسی کا جب عالم ہوگا تو لڑکی جو ہے وہ 24 گھنٹہ لڑکے کے طرف دھیان جائے گا، اور لڑکا کا بھی 24 گھنٹہ دھیان لڑکی کے طرف جائے گا. جی اس وقت خدا بھی اتر کر صحیح. کے آگے کہے گا نا کہ تو ادھر دھیان مت لے جا، بولے گا تو یعنی یہ نا اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں. اسی عالم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نشہ جو ہے نا سر پہ چڑھ جاتا ہے. اچھا. اسی کو ہسٹیریا جی جی. بولتے. اور جو لڑکے کو چڑھ جاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجاگ کہتے ہیں. اب لوگ سجاگ. سوچتے ہیں کہ بھوت شیطان پکڑ لیا، کیونکہ آؤں کھاؤں بکنے لگا نا، کیونکہ خواب میں جو جو دیکھا تھا وہی وہی بک رہا ہے. ہوتا کچھ نہیں. تو ہاں، اس کا کیا حل ہے حضرت؟ مطلب اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ارے حل یہی ہے، کسی پیر کا مرید ہو جاؤ یار، بس بات ختم ہے. حل یعنی اس سے آسان اور کیا حل چاہیے آپ؟ ارے اللہ پر ایمان اور اللہ کے صحیح. رسول پر ایمان لاؤ.
आकर के तुमको एक जी ताबीज पर ईमान ला के छोड़ दिया, तुमको झाड़ और फूक पर ईमान ला के छोड़ दिया, दुआ और ताबीज के ऊपर ईमान ला सही के छोड़ दिया। तो कुरान में फरमान सुनाता हूं आपको, अल्लाह ने फरमा दिया कि जो मुझसे और मेरे महबूब से ईमान हटाएगा उसको तपती हुई रेत में रेगिस्तान के पेट के बल चलाऊंगा। ये भूत शैतान पर ईमान रखने वाले ये पेट के बल चलेंगे। पेट के बल कौन चलता है जानते हैं? सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े चल रहे हैं ना। जी 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 हाँ, तो पता चला उसी के बारे में नहीं कहा कि जहन्नम में तुमको सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े यानी जो बना डालेगा, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहोगे। सबसे बड़ी बात इससे है कि बचने किसी का कामिल सबसे से आसान जुड़ उपाय जाएं। है 8 बिल्कुल साल बिल्कुल का उम्र हुआ कि अल्लाह का हुक्म तुम पर लागू हो गया, ऐ लोगो तुम ईमान कबूल करो। हाँ? मेरे महबूब के हाथ में बेशक हाथ देकर ईमान कबूल करो, कलमा पढ़ सही बात। करके और मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाओ। अभी आपको मालूम है 99% लोग हैं जो ऐसे ही यानी जो ना आवारा यानी जो पशु की तरह घूम रहे हैं। उनसे बोलो तो बोले अभी सही बात। मुरीद होने का समय नहीं है, है? हाँ हाँ बिल्कुल यही लेकिन कहते आवारा गर्दी करने का समय है। हैं। मुरीद जी होने का समय 8 साल से शुरू हो गया। अब उसके बाद जितने भी जी सांस लोगे ना वो सबका हिसाब होगा। तुमको जितने ख्याल देगा सही ना खुदा उतने का हिसाब लेगा, 8 साल के पहले का हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि वो 8 साल के जी जी पहले जी का मासूम में गिनती है। हाँ, सही तो कोई दूसरा नहीं, जिसका जो काम है उसी से ही होगा। बीमार है जाहिर में तो भाई डॉक्टर के यहाँ जाए वो, है ना। बातिन में जी अगर बेशक बीमार है तो वो किसी पीरो मुर्शिद के लिए दर पे जाए, और मजार पे नहीं। हयाते जिंदगी समझा नहीं दर्दे जिगर का माजरा, बाद पर्दा होने के आया फूल चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, वो नहीं, बल्कि हयाते जिंदगी में किसी पीरे कामिल के दस्ते हक पर बैत हासिल करे, यानी मुरीद हो। वो बिल्कुल जितना बताए उतना मुकम्मल करो, उसके बाद आगे बढ़ो। मेरे की पीर क्या कहते हैं जी कि जो मैंने तुझे दिया है इससे आला कोई अमल देता है तो मैं भी उसके हाथ में मुरीद हो जाऊं, और मेरे जितने मुरीद हैं सबको मैं मुरीद कराऊंगा। हैं? क्योंकि हम जी दुनिया में आए हैं अपने रब को जानने के लिए, पहचानने के लिए, पाने के लिए, अपनाने के लिए, जी उसके हो जाने के लिए, है कि नहीं। सही हाँ, बेशक मान लो एक मुसाफिर है, माशा सफर करने के लिए उसने इरादा किया है, तो जब तक घर वापस नहीं आएगा तब तक वो मुसाफिर है ना। तो मुसाफिर बिल्कुल सफर में है तो फिर जब तक यानी ये ना अपने जगह पे लौटेगा नहीं तब तक वो मुसाफिर अपने जरूरत का सामान लेता है कि घर जाऊंगा वापस ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, है? लेता बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन जब अपने सही मंजिल बात पे पहुंच जाता है तो फिर उसका यानी इख्तिताम हो जाता है कि यार अब तो यानी हम घर वापस लौट आए। वैसे ही है, हम आलम अरवाह से चले हुए हैं, हैं? और हम आलम जी अरवाह के मुसाफिर हैं, इस दुनिया के हम नहीं है। वापस उस आलम सही अरवाह बात में जा करके उस रब के सामने जवाब देना पड़ेगा कि हमने तुमसे वादा लिया था, तुमने वफा किया कि नहीं किया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या बिल्कुल मैं तुम्हारा रब हूँ? तो तूने उस वक्त वादा किया कि हाँ बेशक तू मेरा रब है। वफा किया? नहीं किया। जब सही मैंने बात कहा तू मुझे जानेगा पहचानेगा, तू मुझे जाना पहचाना? नहीं जाना पहचाना। तू मुझे जानकर पहचान कर मेरी इबादत करेगा, मुझे जानकर पहचान कर इबादत करता था? नहीं बगैर देखे बगैर जाने नहीं करता। सही बात जब वो बगैर बंदा जाने ये इबादत सोच कर ले कि खुदा मुझे देख रहा है तो फिर तो यानी ये ना ये कभी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन ये सही चीज बात है कि मैं भी खुदा को देखूं, क्योंकि वो आला है, वो मुझे ही बार बार देखता रहेगा, मैं कब देखूंगा उसको? मैं कब है? देखूंगा बिल्कुल यानी गैब पर ईमान सही बात बेशक लाओ, लेकिन
اس لیے کہ تاکہ اسے میں جان سکوں، اسے میں پہچان سکوں، میں اسے اپنا سکوں. تو صحیح. کہا ہے نا خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب. بے شک بے شک. یؤمنون جی بالغیب، ایمان والو اے لوگوں تم یعنی یہ غیب پر ایمان لو. تو ہدی للمتقین تاکہ تم کو یعنی یہ ہدایت یعنی یہ سے مل جائے. متقی بن تو جائے. بے ہدایت شک. یہی ہے، ہدایت مل جائے گا. آپ غیب پر ایمان رکھو اور اسے غیب میں ہی رہنے دو. کیا آپ خیال کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. کیا آپ سوچ کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. کیا سمجھ کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. نیت کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. حرکت کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی غلطی نہیں کیا ہے. جو کچھ غلطی کیا آپ کے خیالوں نے کیا، آپ کے سوچ نے کیا، آپ کی سمجھ نے کیا، آپ کی نیت نے کیا، آپ کی حرکتوں نے کیا ہے. ماشاء اللہ. بہت عمدہ. تو جی جو بے شک. دکھتا ہے وہ بندہ ہے، وہ اس دنیا میں فنا ہے، اور جو نہیں دکھتا ہے وہ خدا ہے، وہ ہمیشہ بقا ہے. بقا ہے. جی بے شک بے شک بے شک. بہت عمدہ. آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اگر آپ کہیں سے مرید نہیں ہو تو برائے مہربانی سب سے پہلے کسی پیر کا مرید ہو. اور صحیح. یہ حجت بازی نہیں کرنا، بلکہ با ادب، با نصیب، بے ادب، بد نصیب، یعنی ادب سے پیر کی صحبت میں بیٹھ کر اور راز و نیاز کی باتیں سیکھنا. جی یوٹیوب پہ، فیس بے بک شک. پہ جب بھی اس چینل کو دیکھنا تو ایک ایک باتوں کو غور کرنا. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اسے اپنا لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو کامنٹ باکس پہ سوال ڈالنا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ دوبارہ مجھ تک بات آئے تو میں یعنی آپ کو سمجھا سکوں. صحیح. اور اگر میں نہیں سمجھا پاؤں گا تو پھر میں اپنے پیر و مرشد سے سمجھ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، ہے نا. جی صحیح. اور پھر بالکل. زیادہ سے زیادہ یعنی یہ نہ کوشش کرنا کہ اس کو شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا، جی. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت. اور کچھ یعنی میسج دینا بول رہے ہیں. اور خاص طور سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ سب جو سن رہے ہیں ہم لوگوں کو، حضرت جی کا بھی ایک اپنا چینل ہے سرکار راحت پیر کے نام سے، ان کا چینل کو بھی سب سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں سب مل کر کے، اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کریں. چلو شکریہ شکریہ شکریہ، بہت بہت آپ کو شکریہ. جناب. چلیے بہت جی بہت. اب آپ کے والد صاحب کو یہ میرے طرف سے سلام پیش کرنا، جی حضرت. اور ناظرین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے میری دعائیں ہیں کہ مولا سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، سب کے روزی روزگار میں ترقی عطا فرمائے، ہر ایک کو ایمان کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائے. مولا اپنے رحیمی اور کریمی کا صدقہ عنایت فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی آپ کی. میرے علم میں اضافہ ہوا آپ لوگوں نے پوچھ کر کے، اور مجھے یعنی جیسے پچھلا یاد دلا دیا. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے حضرت. یہ کچھ نہیں، یہ سب حضرت میرے پیر و علم مرشد میں کے نگاہ کرم کا صدقہ ہے. اور دیکھو، بے شک. عالم پڑھاتا بے شک ہے لیکن فقیر پلاتا ہے. ہم نے جو کچھ صحیح. پڑھا لکھا تھا وہ پل میں بھلا دیا، اور کافر نگاہ جی. ناز کو مومن بنا دیا. ماشاء. دیر و حرم کے چکر میں ہوتے رہے عمر خراب، راز خودی بتا کر سب کچھ چھڑا دیے. ابھی بس دیکھو، عبادت کرنے والے کئی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے خاص بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ خدا کو کتنے پل یاد کرتے، جتنے پل آپ یاد کرتے ہیں اتنے پل کا آپ عبادت گار ہیں، عبادت گزار ہے نا. اگر ہر پل کی عبادت کرتے ہیں تو ہر پل آپ کا خدا، کچھ پل کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ پل کا خدا ہے نا. اگر آپ یہ سوچ کر کے کہ ہم خدا پر احسان کر رہے ہیں اس کی عبادت کر کے، تو یہ غلط بات ہے. عبادت کرنے کا مقصد اور مطلب یہی تمہارے اندر کی گندگی دور ہو جائے اور بندگی میں شمار ہو جائے.
اور تمہاری ہوں زندگی انمول ہو جائے اور تمہارا نام روشن ہو جائے. ہیں؟ جی جی تم خود جانے جاؤ، بے شک پہچانے جاؤ، جو بھی جانے تم کو وہ یہ کہے کہ بندہ خدا کا ہے، امتی رسول خدا کا ہے، مرید پیر کا ہے، اولاد ماں باپ کا ہے، شاگرد استاذ کا ہے. ہم؟ اس دنیا جی میں بے شک ایک رحمت بن کر کے آیا ہے. اللہ ان کی عمر درازی عطا فرما، یہی بولیں گے نا؟ لیکن ایک جہمت ہوں پھیلا رہا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ جلدی اس کو اٹھا. جی بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ٹھیک؟ صحیح بات ہے تو لوگ دیکھو، یا اللہ غرور کو نہیں پسند کرتا ہے. نماز 6,40,000 سال ابلیس نے پڑھا، نماز سے اللہ خوش نہیں ہوتا، یاد رکھنا. نہیں ہاں. روزہ رکھنے سے بھی اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے ہوگا، نہ حج کرنے سے ہوگا، نہ قربانی جی دینے سے ہوگا، کچھ نہیں. بلکہ اللہ راضی ہوگا تو کس سے ہوگا معلوم؟ جس دن اپنے میں کو مٹا دو گے کہ اللہ تو ہی تو ہے، مٹانے سے میں نہیں. ہوں بڑی جو بات مجھ میں بولتا ہے وہ میں نہیں ہوں. ہاں میں نہیں میں نہیں. ہاں، ہوں جو مجھ میں بولتا ہے وہ میں نہیں ہوں. ظاہر آنکھوں میں میں دیکھو وہ رب جلوہ نما ہے، وہ میں نہیں. بے شک بے شک کانوں میں بہت جو صدا آئی دونوں جہان کی، یہ تو سمیع اللہ بنا ہے، میں نہیں. رب یرنی تھی موسیٰ کی ندا، آج کلیم اللہ رب کی زباں ہے، وہ میں نہیں ہوں. ہیں؟ میں نہیں واہ ہاں، بے شک دستے دراز سینکڑوں عیبوں کا عیب ہے، جس دست میں عیب نہیں وہ دستے غیب ہے نا. ہر چیز بے شک بے شک ہر چیز یہی ماننے پر. غرور کو اللہ نہیں پسند کرتا. اگر نمازی کو نماز کا غرور ہے، اللہ اس کے منہ پہ مار. روزے منہ پہ دار کو مارے روزے کا صحیح غرور ہے، اس کے منہ پہ مار. زکات دینے والے کو بے شک زکات کا دانی ہونے کا غرور ہے تو اس کے منہ پہ مار. حاجی کو اگر حج کا غرور صحیح ہے تو اس کے منہ پہ مار دے گا. غرور بے نہیں ہے شک بے اللہ شک کو پسند. ورنہ تو سب سے عابد، زاہد، تقوی، طہارت والا، متقی، پرہیزگار، عالم و فاضل، اور وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد ابلیس سب سے پہلے جنتی ہوتا. ہاں؟ سب سے پہلے، صحیح لیکن اس بات کو غرور نے مارا. اس لیے غرور نہیں صحیح پیدا کرنا. آپ لوگ کو بھی میری تاکید، جی کتنوں بھی بہت عروج اچھا پیدا پیغام ہو جائے لیکن غرور پیدا نہ ہو. نہ ہو ہاں، صحیح بات ہمیشہ ماں باپ کا ادب کرنا، ہمیشہ بزرگان دین کے سامنے اپنے زانو ادب طے کرنا. کوئی بھی ہو اپنے سے اعلیٰ بالکل ماننا. کسی کو بالکل بھی بالکل طنز نہیں کرنا. کسی کو بھی یہ مت سوچو کہ وہ کمتر ہے، بلکہ ہم سے بہتر ہے. بہتر ایک مرتبہ ہوا ایسا، ایک نمازی نماز بے شک کے لیے جا رہا تھا، ایک کتا جو ہے نا ٹکرا گیا. جی اس نے سوچا کہ میں ناپاک ہو گیا، تو کتے کو بھی اللہ نے زبان دیا، بول دیا، کہا کہ میں تو پاک ہو گیا نا. ہیں؟ کہا تو کیسے پاک ہو جی گیا؟ بولا وہی تو پوچھ رہا ہوں میں کہ تو ناپاک کیسے ہو گیا. ارے کیسے بولا ہو تم گیا مجھ سے ٹچ ہوا نا. تو بولا تو یعنی تو بھی تو میرے جی سے ٹچ ہوا ہے نا. نہیں ٹچ ہوا ہے. صحیح بات ہے بالکل بالکل صحیح بات. دیکھ تیرا نام یعنی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، میرا نام یعنی جو ہے نا کتمیر بول کر کے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. صحیح تو پتا یہ چلا کہ کسی کو بھی نیک نہیں ہونا چاہیے، نہیں کسی آنا چیز کا چاہیے غرور نہیں آنا چاہیے. بلکہ کون سی نہیں ادا اللہ پسند کر لے. ہاں؟ کون پتا سی نہیں ایسی معلوم ادا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت برس پڑے. یہ سب ہوتا ہے اس کے حکم پر. نہ کوئی غلط ہے صحیح بات نہ کوئی صحیح. آپ اگر غلط ڈھونڈنے نکلیں گے سب غلط مل جائے گا، آپ صحیح ڈھونڈنے نکلیں گے سب صحیح مل جائے گا. صحیح آپ ڈھونڈنے کے لیے کیا نکلے ہیں، غلط یا صحیح؟ ارے جی حق ڈھونڈنے کے لیے بالکل نکلو، نہ بالکل غلط نہ صحیح. یہ غلط اور صحیح کے بیچ کا حق کیا ہے؟ اچھا اور برا کے بیچ کا حق کیا ہے؟ نیکی اور بدی کے بیچ صحیح کا بات حق کیا ہے؟ آپ حق ڈھونڈنے نکلو نا. بالکل بالکل تو حق پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو معلوم پڑے گا حق جو ہے وہ اللہ ہے. ورنہ تو پل سے رات پہ اٹک کر کے کروں کہ نہیں، ہے کہ نہیں، جاؤ کہ نہیں، دے گا کہ نہیں، مانو کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، برا ہے کیا ہے. تو پتا چلا نہیں اور ہے کے چکر میں آپ پھنس گئے. پل سے رات آپ کا بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہو گیا. کیا یہی بکری میں
यही बकरे पे सवार होकर के पुलसिरात पार करोगे? अरे इस जो बक रहा है ना, इसको कुर्बान करो। हैं? जो बक रहा है, सही बात। ये जो बक रहा है ना, बकरा, बहुत ये जो बक रहा है, इसको कुर्बान कर दो। कुर्बान हाँ, कुर्बान कर। कुर्बान। वाह, तो ये जो है ना, बहुत बकरा उम्दा जो है ना, इस्तेलाह। आपको पुलसिरात पार करा देगा, यकीनन। बेशक। बेशक बेशक बेशक। ये जो दम है ना, माशाअल्लाह। दम है, इसको क्या दुम्बा बात है कहते हैं, जनाब, दम का जमा दुम्बा। क्या ये दुम्बा कुर्बान कर दो अल्लाह के राह में। देखो तुमको अल्लाह यानी अपना दोस्त बना लेगा। जब आप हर सांस पर यानी जो ना दम। तवज्जो डालोगे ना कि मेरा एक भी सांस बगैर हुक्म रब्बी का आया नहीं है, तो बगैर हुक्म रब्बी का जाना भी नहीं चाहिए। अगर वो जाना भी नहीं। हमको गिन के सांस दे रहा है, तो हमको उसका शुक्र अदा करना पड़ेगा। जी, उस सही। पीर से जाकर के यानी ये ना मुंसलिक हो जाओ, जो पीर तुम्हारे मुर्दा सांसों को जिंदा कर दे, और तुम्हारे नफ्स बिल्कुल। जो जिंदा है ना, उसे यानी मार दे। बेशक। बहुत खूब। चलिए चलिए आगे जनाब, कुछ यानी बहुत जैसा है तो शुक्रिया, आप बहुत बोल सकते उम्दा, हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। ये हमारे लिए जो है बहुत आई ओपनर प्रोग्राम था, और बहुत ज़्यादा मालूमात, बहुत ज़्यादा जो है नसीहत आमेज़, और बहुत कुछ ऐसा हमें जानने को मिला कि जो कि आम नहीं है। और उम्मीद करते हैं हमारे सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन सबको ये बहुत पसंद आएगा, और अपने कमेंट्स, अपने सवालात, जैसे बाबा राहत पीर जनाब ने भी फरमाया, तो उसी तरह से आप अपने सवालात जो है वो हमें उनसे ज़रूर आगाह कीजिए। आज की एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम होती है, और हम हाज़िर होंगे अगली एपिसोड लेके। आप मेरे हमें कहने सुनने में क्वेश्चंस अगर भी कर किसी सकते किसी हैं, की या कोई अपनी आरा गलती भी दे हुई हो, सकते हैं। तो आप लोग दरगुजर करें, माफ करें, है ना, मेरी जी, जी, जी। लग़ज़िशों को, नहीं नहीं, खताओं को हम दूर करें। और देखिए एक बात और भी है जी ना, बिल्कुल खास बिल्कुल। अपने ज़हन दिमाग में नोट करें। मेरी कही हुई बातों के माने दो, जो समझ में आए उसे अपना लो, और जो नहीं समझ में आता उसे जाने दो। जाने दो। वाह। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, बिल्कुल, इसी बेशक, तरह से बेशक। है। बिल्कुल इसी बहुत तरह खूब। से होना भी इसी तरह से चलो चाहिए, और जी, जो समझ में आया उसको अपना लेना चाहिए, जो ना समझ में आया उसको जाने देना चाहिए। वैसे बाबा जी, हम तो क्या, हमारी क्या औकात, हमको माफ करें या कुछ, लेकिन ये ऑडियंस के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा, वो पसंद आया होगा। आप हमें नहीं नहीं, कांटेक्ट कर बेशक, सकते हैं ये बहुत बात जो है मेरे zarbilfm@gmail.com पीरो पे। मुर्शिद तक भी जाएगी ना, मुझसे जो आला है उन तक भी जाएगी ना बात। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मैं हाँ जी, उनके यानी जे नहीं ना बेशक बेशक। कदमों के खाक का यानी जे ना जर्रा नवाजिश हूँ, तो मैं यानी जे ना चाहूंगा ना कि मेरे बिल्कुल, पीरो बिल्कुल। मुर्शिद या मेरे पीरो मुर्शिद से मुंसलिक जितने मुझसे बड़े हैं, हाँ, आला और मर्तबे वाले हैं, उन लोगों में भी ये बात ना जाए कि मौला किसी किस्म की छोटी बड़ी कोई गलती यानी बुलवा दिया हो, इसलिए मैं माफी जी, मांग लेता हूँ। सही बात। हाँ, कि वो लोग यानी मुझे माफ नहीं, कर दें। अच्छी बात है, ये बहुत टूटी अच्छी फूटी बात है। जुबान बल्कि से जो कुछ भी बोला, और सरकार हम आप भी ही लोगों का सदका बोला मैंने। नहीं, माशाअल्लाह। बिल्कुल हम भी आपसे आपसे मदद ख़्वाह हैं कि अगर कोई भी हमारा सवाल या कोई भी हमारी बात बिल्कुल। आपको जो है अच्छी नहीं लगी हो, तो और इस सिलसिले में दूसरी बात ये है कि हम लोग खुद भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग खुद भी जो है तहकीक और इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर कोशिश करते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए, आपके लिए भी, हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए जो इस राह के हाँ जी, मुसाफ़िर बहुत हैं, जो बहुत इस राह में बहुत चलने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसकी जज़ा अता फ़रमाए, और हमारे सुनने वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए, उनके तमाम मामलात में, उनके रूहानी मामलात में, उनके दुनियावी उमूर में, और अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ नासिर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आपके कीमती वक़्त के लिए, आपके देखने के लिए, आपके सुनने के लिए, और अमीर अफ़ज़ली साहब का बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। शुक्रिया जनाब बाबा राहत पीर का तमाम हमें खिदमत अंजाम देने बहुत का। शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ जज़ाकल्लाह, नासिर हो। जज़ाकल्लाह। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।